Please put words into your groups. If someone wants to join, they'll join. We'll start in 2 3 minutes, 2 minutes. Okay, good evening, everyone. All the students, quickly in the chat box, can you hear me? All the students are present. I request you to come on the chat box or unmute yourself and reply. Can you hear me? Thank you, Akanksha. Thank you, Pushpak. Yash, Mihir, Amarpreet, Prathamesh. Thank you. Okay, first of all, let me brief you why are we here. Okay, this is Ajay Singh is presenting the screen. Can you stop presenting now? Sometime. Okay, thank you. So let me first brief why are we here. Okay, we are here because your college has done its wonderful work in getting Prerna scheme, which is for providing free education, free training for SC/ST candidates primarily, but it is for all the students, all other category students are also allowed and participate can participate into this training program. The training program is primarily aimed towards giving training for GATE. But with Engineers Academy and the faculty, one of the best faculty across the country, we have requested sir to allow us to train you into all engineering entrance examination, whether it is GATE or ESE or for electrical engineering state MPSC, MPSC, AE exams or SSC JE exams, RRB JE exams, or any exams which have engineering students as an eligibility criteria. So our focus or intent or objective will be to train you for GATE and allied engineering competitive examination, and that is why this Prerna scheme is into place. We have already done this training last year. Your seniors, will be able to give you inputs in that, and we have done that very properly. This year we have started little late, but our focus is obviously Gate 23 as well as in moving towards Gate 22. We'll try to cover as much as possible so that you will be able to attend certain good number of questions at least through the subject which we are starting with. First thing I would like to instruct everyone, this is going to be a wonderful experience for you. Again, the corona has come back. College start होने वाले थे, start नहीं हुए. So again, online is there. And through this online process, you will be able to complete your gate coaching or gate training or government examination training, which has engineering as students as an eligibility criteria. Any and every exam, that's what our objective is. So we'll try and do it tool, and one of the best announced faculty pool from Engineers Academy, which is the largest organization in terms of engineering competitive examination. Only organization, rather, I'd say, which trains students not only for GATE but all allied engineering entrance examination, including ESE, MPSC, and SSC, which are prominently there. More importantly, RRBJ, which is the biggest recruiter of engineers of electronics as well as electrical,
सिविल मैकेनिकल तो रहते ही है, लेकिन आरआरबी जेई इज ऑल्सो ड्यू इन दिस कमिंग ईयर. So our plan is to make you, well versed with these kind of examination, give you that content, that coaching, which will be very helpful for these examination. And it is a very serious, result oriented and quality training program. Only problem or only condition is your seriousness, because it is strictly not allowed for us. If you're not there, we will not be able to conduct this training program. Today, what we have somewhere around 10 or 10, 11 students. We need at least 15 to 20 students to carry on this training activity. Today, maybe students do not know about it, hence there is a delay. So it's my request to all of you that if you want this free training, free quality, result-oriented training where every entrance examination will be covered for coming next year or so, or maybe 6 to 8 months, I feel you have to pass on the word of mouth to all your seniors, all juniors, all your classmates, so that maximum students should join. I'll give you an example. I hope you know. I don't know whether you're allowed, but higher mathematics classes are also simultaneously running, and we will. Uh, is anyone aware of this fact that higher mathematics class for GATE is going on? Are you attending that? Quickly, yes or no? Do you know that? Yes, you are attending, Pushpa? Sometimes, sometimes. Okay. This sometimes will be very difficult for you people. See, no, I don't know. Means maybe you feel that this is, college is doing, or these are free classes, so hence, you don't take it seriously or you take it lightly. But I feel college has got the fund from central government. College has got the fund from AICT. This is AICT sponsored scheme, and hence it is free to you. It's not free because the quality is not there. It's free because it has been funded by the government. And I feel you all the students of BJTI should take benefit of this and try to develop yourself in this online mode for coming GATE examination. In fact, third year students can also appear for GATE, final year can also appear for GATE. So it will be very easy for you, or it will be very convenient for you to check whether you are a GATE quality material or not. And for that, you don't have to even spend anything, because this Prerna scheme will definitely help you out in figuring out or in preparing the subjects. So today we will start with control system, one of the important subject, and one of the best faculty of Engineers Academy is going to conduct this. This activity will be at least 3 to 4 days. Initially we'll have 2 days a week, but we eventually will increase the number of hours and number of days, and we'll try to cover as much as possible before your gate 22, and obviously it will be extended till your gate 23. So it's again I would like to request everyone to let your friends and all other knows, because if the attendance is below 20, the classes will be discontinued as it happened in civil. But let me tell you one thing, mechanical and production, these two streams are enjoying this classes and they've been serious and their classes are running smoothly. They are doing higher mathematics also, they are doing Tom also, their core subject is also going, higher mathematics is also going, because they are maintaining the attendance. So if you want your control system, digital signal sense system for electrical machines and power system, digital electronics, these subjects which are very important in terms of GATE and other exams. If you want these subjects to be taught by uh, faculties which have at least 15 years of experience in training GATE and ESE and all allied engineering competitive examination, if you want this to happen, you first criteria, you need to be present, everyone who is there today, and you also need to get your friends also on this platform.
Okay. So I hope you understood what I wanted to say. Are you interested? Everyone, please reply yes or no. You're here, hence it is assumed that you're interested. Whether you will be continued, whether you will show that interest and regularity. Yes, Akanksha, thank you. One. I have one. I have two. Only two students. Rest all. Where are you guys? We need 20 students to run this activity. So you all need to add a zero to it. Other students, are you listening? Pushpak says yes. And Pushpak, please don't be sometimes, be regular every day. Okay. There are total 8, 9 students present here, 10 students present. Where are others? Is it so difficult for you to type the response? I want response and affirmation from everyone to start the class. Yes says yes. I have third student. Aniket fourth. Prathamesh fifth. Okay. So let us start today with control system with one of the best faculty of Engineers Academy, one of the core faculty member of electrical and electronics group. And sir will continue with this subject. We will have different faculty for different subjects. So sir will start with this control system and then lined up is digital electronics by sir. So let us start this session. And again, final request tomorrow, you have to talk to your friends today itself and get your friends also in this class. Otherwise, it will be discontinued and you will lose out on this opportunity. किसी का लॉस नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास फंड वापस चला जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान आप लोगों का होगा जहां पे आप फ्री कोचिंग कर सकते हो गेट की इतने अच्छे से घर पे बैठ के ऑनलाइन विद बेस्ट organization, best brand of GATE and engineering entrance examination in India. Do not miss this opportunity. Sir, I would like to request you to start the session. Okay, sir. Okay. Hello, guys. Am I audible to everyone? Say yes or no. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, okay, okay. So, guys, start करेंगे control system. Okay. So, guys, हम आप लोगों ने फिफ्थ सेम में पढ़ा होगा आई थिंक सब लोगों ने, ठीक है ना? तो कंट्रोल सिस्टम आई थिंक मेरे ख्याल से विजिबिलिटी ठीक है, आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन? से यस और नो, देन वी विल स्टार्ट. ओके. सो गाइज कंट्रोल सिस्टम करेंगे गाइज स्टार्ट. तो कंट्रोल सिस्टम में गाइज आप लोगों ने फिफ्थ सेम में पढ़ी होगी गाइज, ये आप लोग की गेट एग्जाम में है. इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो डबल ई में हमारे पास लगभग 7 8 मार्क्स के अराउंड हमारे पास आता है, और ईसी में भी यही हमारे पास वेटेज रहता है गेट के एग्जाम में, ठीक है? 7 to 8 मार्क्स नियर अबाउट हमारे पास ईसी के एग्जाम में जैसे जो है ये 8 to 10 मार्क्स तक चला जाता है. अदरवाइज अगर मैं गाइज गेट के अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में गाइज इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, यानी 15 से 20 नंबर के आसपास चला जाएगा दोनों ब्रांचेस में, ठीक है गाइज? 15 to 20 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ठीक है गाइज? बाकी अगर अगर आप लोग बात कर रहे हैं किसी अदर जेई एंड एई एग्जाम की, तो गाइज उसमें भी हमारा वेटेज जो है वो कंट्रोल सिस्टम का किसी में हमारे पास वेटेज, जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हैं इसरो का एग्जाम, स्टेट का एई का एग्जाम,
ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। 1 मिनट गाइज। ओके। सो गाइज, कंट्रोल सिस्टम में गाइज अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम स्टडी करेंगे कि हमारे पास सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो गाइज हमारे पास सपोज ये एक हमारा कोई फिजिकल सिस्टम है। ठीक है गाइज, दिस इज अवर पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम मीन्स सर व्हाट। तो गाइज अगर मैं फिजिकल सिस्टम में बात करूं तो फिजिकल सिस्टम गाइज कोई भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी एक फिजिकल सिस्टम में काउंट होता है। ठीक है। कुछ दे ऑल आर इन कि हम रोटेट करें। इनपुट सर ह्यूमन एनर्जी दे रहे हैं, तो खाना रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं ताकि उस एनर्जी हमारे हम लोग एक पर्टिकुलर हमारे पास जितना है उतना आउटपुट कभी मिनिमम, क्योंकि हमेशा हमारे किसी सिस्टम में इस एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की वजह से ही हमारे इनपुट और आउटपुट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल आपसे बात आरपीएम पे रोटेट होने के लिए। ठीक है। वैसे तो आप मोटर को इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं गाइस, बट वहाँ तो इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं, मैं मैकेनिकल इनपुट के बेस ही आप लोगों से बात करता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने एक मोटर को इनपुट दिया 10 आरपीएम के हिसाब से रोटेट होने के लिए। गाइस मुझे बताइए आपका आउटपुट 10 आरपीएम आ सकता है क्या? नहीं। क्योंकि अगर आउटपुट भी 10 आरपीएम आ गया तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी 100% होगी, और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली किसी पर्टिकुलर सिस्टम की एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि आपका आउटपुट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से, और ये 8 आरपीएम या 9 आरपीएम भी सपोज गाइस मान लिया कि गाइस ये हमारे पास 9 आरपीएम आउटपुट दे रहा है, तो गाइस बताओ एक्सटर्नल होगा कितना आउटपुट डिस्टॉर्ट किया? 1 आरपीएम का आउटपुट डिस्टॉर्ट किया है। गाइस इसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को आप ध्यान रखें, आप लोग इसे
I think guys, voice is clear now. Am I audible, guys? ओके, तो स्टार्ट करें। आवाज का कुछ लोग इशू बता रहे हैं गाइज। अभी आवाज एकदम क्लियर है? पुष्पक, यश, बाकी लोग बताएं। प्रथमेश, माय वॉइस इज क्लियर नाउ? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइज अगेन। तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को एक इनपुट देते हैं हम लोग एक डिजायर्ड आउटपुट के लिए। तो गाइज बताओ, इनपुट और आउटपुट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा, और उसकी मेन वजह है हमारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के नॉइज। तो आप लोगों को पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस का मेन वजह कौन होता है? नॉइज। ठीक है। अब गाइज मैं इसी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो गाइज मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, और मैंने इस सिस्टम में क्या चेंज किया गाइज? तो मैंने इस सिस्टम में, हमारे पास गए सपोज मैंने इस सिस्टम को वापस बना दिया। हियर इट इज, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो गाइज ये मैंने लिखा हमारा फिजिकल सिस्टम। ठीक है। अब बताओ आपको इस इनपुट आउटपुट के बीच के डिफरेंस को क्या क्या करना है गाइज? खत्म करना है। हमारा मेन यही है। और इसे अगर हमने डिफरेंस को खत्म किया तो गाइज हमने सिस्टम को हमारे कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल सिस्टम को वापस बनाया, और गाइज इसका मैंने क्या किया है, हमारा ये इनपुट है गाइज वो मैंने यहाँ से दिया। ठीक है। ये इनपुट, ठीक है। तो गाइज इस फिजिकल सिस्टम पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल क्या रहेगी गाइज? नॉइज या डिस्टर्बेंस। तो मैं नॉइज लिख देता हूँ, बाकी ऊपर पूरा नाम लिख दिया मैंने। इस पर्टिकुलर नॉइज की वजह से इसका आउटपुट कुछ ना कुछ डिस्टॉर्ट होगा। तो गाइज मैंने माना कि हमारा आउटपुट जो है गाइज वो हमारे 10 आरपीएम की जगह 9 आरपीएम है। किसने डिस्टॉर्ट कर दिया गाइज? हमारे नॉइज ने डिस्टॉर्ट कर दिया है। ठीक है गाइज। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। गाइज मैंने क्या किया, इनपुट और आउटपुट के इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट लगाया। गाइज ये कौन है? हमारा एक समिंग पॉइंट। ठीक है। गाइज हम लोग एक समिंग पॉइंट माइनस मैंने किसको लिया? तो गाइज मैंने यहाँ एक सेंसर लगाया है। सेंसर काम क्या है वो ध्यान से समझना, बड़ी शानदार चीज़ है। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ से सेंसर लगाया, और कहाँ से सेंस करके ला रहा है? आउटपुट को पीछे से सेंस करके ला रहा है सेंसर, और फिर हम लोगों ने इसको इनपुट दिया है। अब गाइज मुझे बताओ यहाँ पर कितना इनपुट आएगा? तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इनपुट तो प्लस में है, सेंसर का सेंस करके लाया हमारा आउटपुट। आउटपुट का मतलब कितना सेंस करके लाया गया? तो ये सेंस करके लाया हमारा 9 आरपीएम। तो गाइज बताओ, इनपुट तो यहाँ से मिल, ये इनपुट हमारा यहाँ से मिल रहा है, और आउटपुट हम लोग पीछे से सेंस करके ला रहे हैं, यहाँ से इस तरह से ला रहे हैं। कौन सेंस करके लाया? सेंसर सेंस करके लाया। ठीक है। गाइज सेंसर ने सेंस करके उसको यहाँ Now, जो प्लस में माइनस में, आपका प्लस और सेंसर लेकर तो फैन तो भैया ये क्या किया जाए? तो वैसे ना ये किया सिस्टम ये कहलाएगी एरर। तो गाइस होती है वो किसका डिफरेंस होता है? एरर किस किस का डिफरेंस होती है गाइस? इनपुट एंड आउटपुट का। और गाइस इनपुट और आउटपुट के इस डिफरेंस को यानी एरर को खत्म करने का तरीका क्या है सर? तो गाइस इस एरर को खत्म करने के लिए हैं हम लोग गाइस यहाँ पर यहाँ कंट्रोल क्या लगाएंगे?
दिस इज आवर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का काम क्या है? इस This is correct. Really? Now is it clear, guys? Now is it clear? You are getting this noise? Clear? Sir, I guess there's little bit crack in the voice. I guess if anyone else can confirm. Yeah, there is disturbance in the noise. It's not clear. Now? Message me, guys. Now it is over. This is the first, so some issues will be there, but they will be sorted out. Type of message that now the voice is clear, or is it still? Sir, actually it's still breaking, but it is quite less now. Okay, okay, okay. So can we start, guys? Okay, sir. Oh. So guys, there is a particular error, that is the difference between input and output. तो गाइज हमारा काम क्या है, हमें इस एरर को जीरो करना है गाइज। तो हम लोगों ने एक कंट्रोलर लगाया गाइज। कंट्रोलर से क्या हमारी हेल्प कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो एक काम करें गाइज, सबसे पहले तो मैं सेंसर को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। 1 मिनट गाइज। ये हमारा सेंसर जो है, इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। 1 मिनट। तो गाइज ये हमने हमारा सेंसर बना दिया यहाँ पर। हियर इट इज द सेंसर। ये हमारे पास, ठीक है गाइज। कंट्रोलर था, इसका बॉक्स भी थोड़ा सा बड़ा। यस तो हियर इट इज, दिस इज कंट्रोलर। ओके गाइज, कंट्रोलर किया तो कंट्रोलर की क्या प्रॉपर्टी होती है गाइज? ये कंट्रोलर हमारी एरर को कम कम करने या जीरो करने का काम करेगा। अब वो कैसे करेगा? काम करें आप सबसे पहले इनिशियली क्या कर बता दो कारण कर दो आउटपुट। पहले तो आप इन गाइज सबसे पहले इन बातों को समझो कि सिस्टम में एरर क्रिएट करता है नॉइस। कह सकते हैं क्या गाइज, हमारे थोड़ी देर पहले कहा एक्सटर्नल डिस्टेंस एंड द एरर। आई थिंक ये क्लियर होगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इस एरर को, तो गाइस इस एरर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंट्रोलर। क्या यूज करते हैं गाइस? कंट्रोलर। पहले मेन कंपोनेंट का काम बताओ। कंट्रोलर का काम क्या है? एरर किसके? इनपुट और आउटपुट। गाइस बताओ, एरर निकालने के लिए हमें आउटपुट कौन के लाया? सेंसर लेकर आया। कौन सेंसर के लाया? सेंसर लेकर आया।
ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर है। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम को जब स्टडी करते हैं तो गाइज ध्यान रखना कंट्रोल सिस्टम सिर्फ कॉजल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। पूरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो कौन से सिस्टम के लिए पढ़ाई जाती है गाइज, कॉजल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, तो गाइज आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम पढ़े हो शायद, तो कॉजल सिस्टम के बारे में बताया जाता है। कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर पे बात करता है, पास्ट के लिए नॉन कॉजल हो जाता है। तो गाइज जो सिग्नल हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर पर डिपेंड करेगा उसे हम लोग कॉजल सिग्नल कहेंगे। अदरवाइज जो सिग्नल हमारा पास्ट में जाएगा यानी t लेस देन 0 पर जाएगा गाइज, वो सिस्टम हमारा हो जाता है नॉन कॉजल। तो गाइज बताओ सिस्टम बना के रखना है तो आप लोगों को पास्ट में नहीं जाना है, यानी पास्ट की वैल्यू को 0 कर देना है। गाइज पास्ट को ही हम लोग इनिशियल वैल्यू कहते हैं। तो गाइज इस बात को ध्यान से सुनना कि हम लोग चलिए सिस्टम को किस पर लेकर चलते हैं। तो गाइज इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट कंडीशन में लिया जाता है। गैस रेस्ट कंडीशन में लेने का मतलब क्या है कि गैस किसी भी सिस्टम की इनिशियल कंडीशन क्या होगी गैस, तो गैस किसी भी सिस्टम की इनिशियल हमारी 0। सो रिमेंबर दिस, के पास इनिशियली सिस्टम को कौन सी कंडीशन में लिया जाता है कंडीशन गैस, इसका कारण क्या है, हम पूरी सिस्टम पूरा कंट्रोल सिस्टम किसके गैस, कॉजल सिस्टम के लिए। और कॉजल सिस्टम कहता है कि पास्ट पर काम नहीं करना है, पास्ट के लिए कॉजल नहीं, नॉन कॉजल हो जाएगा गाइज, और नॉन कॉजल के लिए कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। अब गाइज रेस्ट कंडीशन का मतलब है गाइज, आपको इनिशियली गाइज इस सिस्टम का आउटपुट बताइए क्या लेकर चलना है। तो गाइज ध्यान रखना है इस सिस्टम का आउटपुट हमको 0 लेकर चलना है। जैसे कि गाइज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे रूम में सीलिंग फैन है। गैस सीलिंग फैन आप दो केस पढ़ सकते हो, या तो सीलिंग फैन को आप पहले से स्टार्ट करो या अभी बंद रखा हुआ है। तो गाइस बताओ आपको इनिशियल कंडीशन 0 लेनी है, यानी कि इनिशियली आपको फैन का आरपीएम कितना लेना है, 0 लेना है। तो गाइस आप लोग अपने रूम में सीलिंग फैन देख रहे होंगे और उसकी स्पीड कितनी है गाइस, 0। वो कौन कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, यानी मैं उसमें कंट्रोल सिस्टम रखता हूँ। ठीक है, अब गाइस आप क्या करेंगे, इस वक्त आपने बताओ आपने फैन को इनपुट रखा है, तो गाइस पहले बताओ आपने इनिशियली इनपुट भी कितना दे रखा है, 0 आरपीएम। आपने कोई इनपुट नहीं दे रखा, तो आपका क्या दे रहा है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस सपोज आपको फैन को रोटेट करवाना है, कितने आरपीएम पे, 10 आर। तो गाइस आप बताइए क्या करें, तो अब गए अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे गाइस, इनपुट अप्लाई करेंगे। तो गाइस आइए इनपुट अप्लाई करते हैं। गाइस सपोज इनपुट के लिए आप लोगों ने क्या किया, इनपुट को काट के, गाइस इस वक्त पहले तो मुझे बताओ आपका सेंसर 0 आरपीएम सेंस करके ला रहा है। तो गाइस बताओ इस वक्त एरर भी क्या है, 0, तो इस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनपुट देने जा रहा हूँ, क्या क्या इनपुट दिया, तो गाइस ध्यान से सुनना, हम लोगों ने इनपुट देने के लिए गाइस सबसे पहले इनपुट अप्लाई किया गाइस, कितना, 10 आरपीएम मैंने इनपुट दे दिया गाइस। बताओ अभी तक तो सिर्फ इनिशियली तो रेस्ट कंडीशन में था, यानी आउटपुट 0 था, तो कोई इनपुट अप्लाई था नहीं। अब गाइस जैसे ही, हाँ योर माइक इज ऑफ, ठीक है गाइस, हम लोगों ने दिया गाइस 10 आरपीएम, तो इस वक्त एरर आउटपुट कितना है, इनिशियल 10 दे दिया गाइस, तो एरर कितनी आएगी, गए हाउ मच विल बी द वैल्यू टाइप पे गए। सर समझा नहीं कुछ, आप वॉइस ब्रेक हो रही थी सर आपकी। वॉइस हो रही है अभी भी, सेइंग कि हमारा सिस्टम जो है ने रेस्ट कंडीशन में ले रखा है। इसमें ले रखा है गाइस, क्यों, क्योंकि कॉजल सिस्टम कहता है कि आपका इनिशियल कंडीशन 0 चाहिए, यानी पास्ट में सिस्टम नहीं जाना चाहिए, इनिशियली उसके पास कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोगों के रूम में भी सीलिंग फैन होगा, वो भी रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन का मतलब गाइस उसमें कोई इनिशियली इनपुट हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
तो गाइज बताओ आपका इस वक्त फैन यानी आउटपुट 0 आरपीएम है। अब गाइज आउटपुट 0 आरपीएम, तो गाइज बताओ आपका पीछे सेंसर भी कितना सेंस करके ला रहा है, 0। गाइज अभी तक आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया था। सपोज अब आपने जाके अपने सीलिंग फैन का स्विच ऑन किया और गाइज आप लोगों ने सीलिंग फैन को इतना इनपुट दिया है कि वो कितने आरपीएम पे रोटेट हो जाए, 10 आरपीएम पर। तो गाइज बताओ इस वक्त आपने इनपुट कितना रखा है, 10 आरपीएम। और गाइज बताओ इस वक्त सिस्टम इनिशियली रेस्ट कंडीशन था, तो आउटपुट कितना सेंस करके लाया, 0 आरपीएम। अब गाइज मुझे इस कंडीशन में बताइए एरर कितनी आएगी। तो एरर किस किस का डिफरेंस आएगा गाइज, इनपुट और सेंसर के थ्रू लाए गए आउटपुट का डिफरेंस होगा। बताइए गाइज डिफरेंस होगा हमारे पास। तो 10 माइनस 0 आरपीएम कर दूं तो कितना आरपीएम आ गया गाइज, 10 आरपीएम आ गया। बताओ इस वक्त एरर कितनी है, 10 आरपीएम। गाइज मुझे बताइए पहले, वॉइस इज क्लियर ना, एंड द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट। टाइप कीजिए, अदरवाइज माइक ऑन बताइए। यहाँ तक क्लियर है सबको, अभी आ रहा है क्लियर, ठीक है। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को, कंसेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट गाइज, एवरीवन टेल मी गाइज। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। तो गाइज बताइए एरर इस वक्त 10 आरपीएम आई है। अब गाइज कंट्रोलर जो है गाइज एज ए इनपुट है हमारे पास। तो गाइज मुझे यहाँ से कौन सा सिग्नल होता है, कंट्रोलर गाइज हमारा थर्ड चैप्टर होगा, ठीक है ना। गाइज कंट्रोलर के पास इनपुट कौन सा सिग्नल जाता है गाइज, एरर सिग्नल जाता है। कौन सा सिग्नल जाता है, एरर सिग्नल। कौन सा सिग्नल, एरर सिग्नल, ठीक है। अब गाइज तो कंट्रोलर के पास यानी कितना आरपीएम, गाइज कंट्रोलर क्या करता है, इसको जो भी मिलता है ना उसे अपने अंदर स्टोर करवा लेता है। तो गाइज बताओ कंट्रोलर ने कितना आरपीएम स्टोर कर लिया, 10 आरपीएम स्टोर करवा लिया गाइज, ठीक है। और ये कंट्रोलर ने 10 आरपीएम में ट्रांसफर कर दिया, कितना 10 आरपीएम ही हमारा, ठीक है। अब गैस बताओ फिजिकल कितना इनपुट गया, 10 आरपीएम सिस्टम के हिसाब से गए 10 पे 9 आरपीएम आउटपुट आता है, नहीं नॉइस कितना डिस्टर्ब किया था गैस, 1 आरपीएम का डिस्टॉर्शन दिया था। तो गैस बताओ अभी 1 आरपीएम का डिस्टॉर्शन देगा नॉइस, तो बताओ फिजिकल सिस्टम के 10 आरपीएम के इनपुट को गैस बताओ आउटपुट कितना बनकर आएगा। तो गैस इसको मैं काट के लिख देता हूँ 9 आरपीएम। तो गैस बताओ नॉइस की वजह से फिजिकल सिस्टम को 10 आरपीएम इनपुट जा रहा है, बट नॉइस की वजह से 1 आरपीएम डिस्टॉर्ट हो गया, आउटपुट में कितना रह गया गैस, 9 आरपीएम रह गया। अब गैस बताओ आपका सेंसर जो है वो आउटपुट से कितना सेंस करके लाया, 9 आरपीएम सेंस करके लाया, लेकर आएगा 9 आरपीएम लेकर आएगा, ठीक है। अब गाइज ये जो 9 आरपीएम आया है, इनपुट तो हम 10 आरपीएम ही दे रहे हैं, तो इसका है और सेंसर से हमारा माइनस का है। गाइज बताओ अब एरर कितनी हो जाएगी। तो इस बार इनपुट 10 है और आउटपुट जो पीछे से लाया गया 9 है। गाइज बताओ 10 माइनस 9 एरर कितनी रह गई गाइज, 1 आरपीएम रह गई है। कितना आरपीएम रह गई गाइज, 1 आरपीएम रह गई। अब गाइज बताओ एरर क्या हुई है, कम हुई है, अच्छी बात है कि बुरी बात है, सर अच्छी बात है। गाइज अब इसी एरर सिग्नल को एज ए इनपुट कौन लेगा, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर गाइज इसके पास जो भी आता है उसे ऐड कर लेता है। तो गाइज बताओ कंट्रोलर ने सिग्नल कितना ऐड कर लिया अपने पास, 1 आरपीएम गाइज इसने ऐड कर लिया, 1 आरपीएम ऐड हो गया। गाइज बताओ कंट्रोलर के पास टोटल आउटपुट देने के लिए कितना हो गया। तो पहले इसने 10 आया था उसको स्टोर कर लिया था, 1 आरपीएम आया उसे स्टोर कर लिया। तो बताओ 10 प्लस 1 गाइज बताओ अब टोटल कितना हमारे पास आरपीएम कंट्रोलर के आउटपुट में आएगा। तो गाइज बताओ कंट्रोलर के आउटपुट में दे दिया गया 11 आरपीएम, ठीक है गाइज। अब बताओ फिजिकल सिस्टम के पास जैसे ही 11 आरपीएम एज ए इनपुट गया, बताओ नॉइस पहले कितना आरपीएम डिस्टॉर्ट कर रहा था गाइज, 1 आरपीएम, तो अभी भी 1 आरपीएम डिस्टॉर्ट करेगा। गाइज बताओ 11 में से अगर 1 आरपीएम डिस्टॉर्ट कर दे तो कितना पहुंचेगा, 10 आरपीएम। तो गाइज बताओ इस वक्त आपको 10 आरपीएम आंसर लेकर आएगा, आरपीएम। तो गाइज बताओ आरपीएम, बताओ इस बार ऐड करेगा अपने अंदर।
ये 11 आरपीएम जो है ये चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि 10 + 1 + 0 भी 11 ही होगा। गाइस बताओ ये 11 ही रहेगा तो नॉइस 1 आरपीएम डिस्टॉर्ट करके इसको 10 दे देगा। तो गाइस बताओ ये 10 आरपीएम चेंज होगा क्या? नहीं। तो गाइस बताओ ये 10 आरपीएम चेंज होगा क्या? नहीं। तो गाइस बताओ ये एरर 0 चेंज होगी क्या? नहीं। तो गाइस देखो एरर 0 हो चुकी है। गाइस बताओ हमारे सिस्टम का इस वक्त ओवरऑल इनपुट है, तो गाइस आप देख सकते हैं इस वक्त आपका इनपुट है 10 आरपीएम और गाइस आपका आउटपुट भी फाइनली आ चुका है 10 आरपीएम। गाइस बताइए आपकी एरर क्या हो चुकी है? 0। गाइस बताओ हमारा सिस्टम ओवरऑल कंप्लीटली जो है वो हमारे को जैसा आउटपुट चाहिए था वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिला कि नहीं मिला? मिला। अब गाइस बताओ ऊपर एक सिस्टम था, एक नीचे एक सिस्टम है। गाइस बताओ ऊपर वाले सिस्टम को मैं क्या कहूँगा? तो गाइस ध्यान रखना, ऊपर वाले सिस्टम को गाइस मैं कहूँगा दिस इज ओपन लूप सिस्टम। कौन सा सिस्टम गाइस? ओपन लूप सिस्टम। क्योंकि गाइस देखो ये हमारा लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये ओपन रखा हुआ है, दिस इज। और गाइस ये जो नीचे वाला सिस्टम है गाइस इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्लोज लूप सिस्टम। दिस विल बी क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप क्यों? क्योंकि गाइस देखो एक फॉरवर्ड पाथ है ये वाला और एक फीडबैक पाथ है ये वाला। तो गाइस देखो ये पूरा क्लोज लूप बन गया। क्यों? तो गाइस बताओ इस क्लोज लूप को हम लोगों को क्या करना है गाइस? ये हमारा पूरा क्लोज लूप बन रहा है इसलिए इसको क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। ठीक है गाइस? तो गाइस बताओ ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया? क्लोज लूप सिस्टम हो गया। तो गाइस बताओ कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा सिस्टम होता है गाइस? एक ओपन लूप होता है और एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। पहले बताइए, 2 things are clear to you or not? Then we will go further. Say guys, yes or no? These things are clear to you or not? Guys, open loop and loop system, open loop and closed loop टाइप के कंट्रोल में गाइस। और गाइस बताइए इनमें सबसे एक्यूरेट सिस्टम कौन सा है? हमारा क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि हम लोग इसमें सेंसर के थ्रू आउटपुट को करवा कर इनपुट से कंपेयर करवा के एरर निकाल के उस एरर को क्या बनाते हैं गाइस? 0 बनाते हैं। ये काम ओपन लूप सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, बट किस में करवाते हैं गाइस? हम लोग क्लोज लूप सिस्टम में करवाते हैं। किस में करवाते हैं गाइस? क्लोज लूप सिस्टम में। गाइस बताइए इज एवरीथिंग क्लियर? देन वी विल गो फर्दर। थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। क्लियर है गाइस एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइस। मैं एक काम करता हूँ, हमारे क्लोज सिस्टम को हम नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ। और हम लोग ऊपर लिखेंगे गाइस सिर्फ ओपन लूप सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ ओपन लूप सिस्टम के बारे में कुछ वर्ड्स लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ हमारा इन कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। लिखना है ओपन लूप सिस्टम। ओके, एंड द सेकंड वन गाइज अगर मैं इस तरफ बात करूं तो इस तरफ होंगे हमारे कौन से? क्लोज लूप सिस्टम होगा गाइज। कौन सा गाइज? क्लोज लूप सिस्टम। ये हमारा ओपन लूप सिस्टम एंड दिस वन इज अवर क्लोज लूप सिस्टम गाइज। ओके, तो गाइज दोनों के कंपैरिजन आप लोगों को आपने जितना समझा है उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम। गाइज मुझे बताइए दोनों सिस्टम में आपने ये वाला सिस्टम पढ़ा था ओपन लूप और ये क्लोज लूप। गाइज बताओ इन दोनों में एक्यूरेसी के मामले में कौन बेहतर है? तो गाइज अगर बात की जाए तो एक्यूरेसी के मामले में हमारे पास ओपन लूप सिस्टम जो है गाइज वो लेस एक्यूरेट है। क्या है गाइज? लेस एक्यूरेट है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो एरर थी 10-9 1 आरपीएम, गाइज इसको आप लोग जो है वो 0 नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ एरर निकाल ही नहीं पाया। ठीक है गाइज, क्लोज लूप में बात करें तो गाइज इसको लेस एक्यूरेट नहीं मोर एक्यूरेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फीडबैक सिस्टम में सेंसर लगाकर इसको इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करा के हमने कंट्रोलर लगा के इसकी एरर को 0 कर दिया गाइज। इसी 0 करने की वजह से गाइज क्लोज लूप सिस्टम विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, द सेकंड थिंग गाइज, सेकंड अगर मैं बात करूं तो गाइज बताओ यहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच में ओपन लूप सिस्टम में कोई रिलेशन है क्या? तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ 10 आरपीएम आउटपुट 9 आरपीएम है। गाइज कोई रिलेशन ही नहीं है।
रिलेशन ही नहीं है, यानी कोई पर्टिकुलर रिलेशन ना होने की वजह से गाइज इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर नॉन लीनियर कहलाएगा। तो गाइज ध्यान रखना, ओपन लूप सिस्टम होता है गाइज वो नॉन लीनियरिटी शो करता है। क्या शो करता है गाइज? नॉन लीनियरिटी। ठीक है गाइज, जबकि अगर आप लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में देखें तो गाइज देखो, आप जैसा इनपुट है वैसा का वैसा आप लोगों ने आउटपुट ले लिया, यानी इनपुट 10 तो आउटपुट 10, इनपुट 12 तो आउटपुट फाइनली 12, इनपुट अगर 50 तो आउटपुट 50, यानी जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। यानी गाइज आपका सिस्टम जब इनपुट और आउटपुट के बीच में गाइज आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा गाइज? लीनियर ग्राफ बनेगा, यानी कि गाइज आप लोगों का क्लोज लूप सिस्टम लीनियरिटी को शो करता है। दिस इज एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि गाइज क्लोज लूप सिस्टम बनाने पर नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट क्या हो जाता है। तो गाइज नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट गाइज अगर मैं बात करूँ क्लोज लूप सिस्टम में, तो गाइज इफेक्ट जो है नॉन लीनियरिटी का वो या तो आप कहेंगे रिड्यूस हो जाता है या आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है। तो खत्म तो हम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो तो आइडियल कंडीशन हो गई, तो हम कहते हैं कि नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, या कह सकते हैं सिस्टम विल बिकम्स मोर लीनियर। ठीक है ना, मोर लीनियर कह सकते हैं। ठीक है, मोर। तीसरा पॉइंट गाइज आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे कंट्रोल सिस्टम में सबसे काम की बात होगी, बट इस पॉइंट को समझने के लिए गाइज आप लोगों को इन दोनों ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो गाइज ध्यान से सुनना, ओपन लूप और क्लोज लूप में जो मेन डिफरेंस है गाइज आप लोगों का वो है सेंसर का। तो गाइज जहां पर सेंसर होगा वो क्लोज लूप सिस्टम होगा, और जहां सेंसर नहीं होगा गाइज वो हमारा ओपन लूप सिस्टम होगा। ठीक है, अब गाइज सेंसर की बात करें तो जैसे मैं आप लोगों से एक एग्जांपल के तौर पर पूछूं कि गाइज हमारे पास सपोज एक हेयर ड्रायर है। कौन है गाइज? हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाला। गाइज बताओ, क्या आपको क्या लगता है हेयर ड्रायर क्या है? एक ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है या क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है? टाइप करो गाइज, या फिर माइक ऑन करके बता दीजिए। हेयर ड्रायर में गाइज हेयर ड्रायर जो है ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? तो पुष्पक ने आंसर दिया ओपन लूप, आकांक्षा का भी ओपन लूप आया है, बहुत बढ़िया। गाइज हेयर ड्रायर एक ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है बिल्कुल, क्योंकि गाइज हेयर ड्रायर में कोई सेंसर नहीं है जो ये कहेगा कि आपने आपके बाल सूख गए, अब मैं बंद हो रहा हूँ। जब तक हम लोग उसको इनपुट देंगे गाइज वो आउटपुट देता ही रहेगा। उसमें कोई सेंसर नहीं लगा जो ये कहेगा भाई तेरे बाल सूख गए बंद कर दे, या फिर मैं बंद हो जाता हूँ खुद ना खुद, खुद को खुद। तो गाइज वो खुद से बंद नहीं होता, उसमें कोई सेंसर नहीं होता। तो गाइज बताइए हमारे पास जो हेयर ड्रायर है वो किसका? हेयर ड्रायर, बहुत बढ़िया। गाइज थोड़ा सा बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन देखा है गाइज? इलेक्ट्रिक आयरन जो आप प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन, क्या लगता है आपको कौन सा सिस्टम है, ओपन लूप या क्लोज लूप? बताएं गाइज। इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, this will be the closed loop. Yes, आकांक्षा इट विल बी क्लोज लूप। गाइस क्यों? आपने इलेक्ट्रिक आयरन करी हो तो आपने गाइस उसमें साइड में देखा होगा रेड कलर की लाइट जलती रहती है। ठीक है गाइस, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन करते हो तो 10 मिनट 15 मिनट तक वो लाइट ऑन रहती है। उसके बाद जब आयरन फुल टू टेम्परेचर पे पहुंच जाती है तो अपने आप वो साइड वाली लाइट बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ है जो ये सेंस करता है कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्रॉस कर चुका है और अब जो है वो आपका क्लॉथ जो है वो बर्न हो सकते हैं। तो इस वजह से गाइज हमारा इलेक्ट्रिक आयरन अपने आप खुद को स्विच ऑफ कर लेता है और थोड़ी देर बाद वो आपका साइड वाला जो रेड कलर का लाइट होता है वो अपने आप ऑन भी हो जाता है। यानी टेम्परेचर जैसे ही एक पर्टिकुलर लिमिट से बिलो जाता है तो वो अपने आप दोबारा से ऑन होकर टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो गाइज बताओ, जिसमें सेंसर लगा हुआ है वो हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? क्लोज लूप का। तो गाइज बताइए हमारा इलेक्ट्रिक आयरन किसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे? गाइज क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल में लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल पूछता हूँ गाइज आप लोगों से। जैसे मैं पूछूँ गाइज हमारा एयर कंडीशनर, क्या लगता है आपको ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन होता है गाइज हमारे घरों में लगा हुआ है ना? एयर कंडीशन बिल्कुल क्लोज लूप, क्योंकि गैस एयर कंडीशनर क्या करता है कि आप लोगों ने एयर कंडीशनर को ऑन किया, सपोज आप लोग गर्मी के दिनों में बैठे हुए हो, टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के आसपास हो रखा है। अब आपको गर्मी लग रही है, आपने ऐसे ही ऑन किया और टेम्परेचर सेट कर दिया 16 पर। तो गैस बताओ उसका कंप्रेसर उसके टेम्परेचर को लो करते 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 16 तक पहुंचाएगा। उसके बाद गैस उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो
उसको डिक्रीज करता रहा तो थोड़ी देर में तो जो है वो बर्फ जम जाएगी रूम में। क्यों? तो गाइज वो 16 पर लाकर उसका सेंसर ये कहता है, सेंस कर लिया है कि भाई 16 पहुंच गया है, तो कंप्रेसर बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगता है गाइस, सेंस आपका कंप्रेसर अगेन ऑन हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 16 से जैसे ही अगेन अबव हो जाता है तो वो हमारा दोबारा 16 पर लाने के लिए कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाता है। तो गाइस बताओ, एयर कंडीशनर में सेंसर लगा हुआ है, यानी उसको भी हम क्लोज लूप की कैटेगरी में डालेंगे। एयर कंडीशनर, ठीक है, ठीक है। गाइस नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक सिग्नल देखा है आप लोगों ने बाहर? ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल किसका एग्जांपल लगता है गाइस आप लोगों को? ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है, ट्रैफिक सिग्नल। सोच के देखो, ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? ओपन लूप है, बहुत बेहतरीन। गैस बताओ, ट्रैफिक सिग्नल में होता क्या है कि हमारे पास सपोज गैस आप लोग एक सर्किल पे खड़े हुए हैं जिस पर 4 डायरेक्शंस बनी हुई हैं, 4 डायरेक्शन से गाड़ियां आ जा सकती है। गैस सपोज एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है, बाकी 3 डायरेक्शंस में गाड़ियां आ ही नहीं रही। तो गाइज हुआ क्या कि हमारे यहाँ ग्रीन सिग्नल ऑन हुआ, सपोज जिस तरफ बहुत ज्यादा ट्रैफिक था उस तरफ ग्रीन सिग्नल ऑन हुआ। अब गाइज वो ग्रीन सिग्नल ऑन रहा हमारा 40 सेकंड तक सपोज। उसके बाद गाइज जितनी गाड़ियां थी वो निकल रही है, बहुत सारी गाड़ियां पास हुई क्योंकि ट्रैफिक जाम था। आफ्टर दैट गाइज हुआ क्या कि 40 सेकंड के बाद ग्रीन लाइट बंद हो गई और येलो लाइट जली 5 सेकंड के लिए, और फिर रेड लाइट हो गई। अब गाइज 4 साइड में से एक साइड का हुआ था, अब गाइज सेकंड साइड की जो है वो ग्रीन लाइट ऑन हुई। गाइज जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होगी 40 सेकंड तक के लिए वो ग्रीन लाइट ऑन रहेगी, लेकिन उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही। और सोचो जिस तरफ ट्रैफिक था उधर और बढ़े जा रहा है ट्रैफिक। गाइज उसके बाद थर्ड साइड का ग्रीन लाइट ऑन होगा और वो भी 40 सेकंड तक रुकेगा, तब तक और ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाएगा जिस तरफ बहुत सारी व्हीकल्स आ रहे थे जिस तरफ से। गाइज मुझे बताओ, जो हमारा थर्ड टाइप वो फोर्थ वाला जो डायरेक्शन था वहां पर भी 40 सेकंड के लिए ग्रीन सिग्नल ऑन रहेगा और बहुत ज्यादा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाएगा। फिर दोबारा जैसे ही फर्स्ट वाले का दोबारा से नंबर आया, ग्रीन लाइट ऑन हुई, ओहो गाड़ियां निकली जा रही है, निकली जा रही है, और 40 सेकंड में गैस दोबारा से रेड लाइट हो गई, येलो लाइट हो गई। तो गैस बताओ, ये हमारा ओपन लूप सिस्टम है जिसमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ, जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट मिल गया, कोई सेंसर का काम ही नहीं है। तो हमारे इंडिया में गाइज जितना भी ट्रैफिक सिग्नल है वो ओपन लूप सिस्टम पे काम कर रहा है। बट गाइज अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो गाइज आप लोगों ने जेब्रा क्रॉसिंग देखी है? जेब्रा क्रॉसिंग गाइज होती किस लिए है? तो गाइज जेब्रा क्रॉसिंग होती है पेडेस्ट्रियन के लिए, यानी कि जो पैदल चलेंगे उन लोगों के रोड क्रॉस करने के लिए होती है। गाइज फॉरेन कंट्रीज में उस पेडेस्ट्रियन पे यानी उस जेब्रा क्रॉसिंग पे गाइज सेंसर्स लगे होते हैं। गाइज वो सेंसर मान लीजिए 5 फीट की रोड है तो 5 सेंसर लगा दिया। अब गाइज उन सेंसर पे जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स निकलेंगे ना, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों की ग्रीन लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट का टाइमिंग फिक्स होंगे। तो गाइज मान लीजिए यही कंडीशन जो अभी हम लोग ले रहे थे कि एक तरफ से ट्रैफिक सिग्नल बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा है और 3 तरफ से कोई रश नहीं है। गाइज सपोज ये फॉरेन कंट्रीज में हुआ तो गाइज वहाँ गाड़ियाँ पहली बात तो जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ी होती है ना। हमारे यहाँ तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही लोग बहुत खड़े रहते हैं या फिर आगे खड़े रहते हैं उससे भी, है ना। तो गैस सारी गाड़ियां जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे है। अब गैस जैसे ही ग्रीन सिग्नल ऑन हुआ तो गैस गाड़ियां पास होने लगी। गैस पांचों सेंसर ने सेंस किया कि उनके ऊपर से नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं, तो गैस सिर्फ 40 सेकंड नहीं, कम से कम 1.5-2 मिनट जो उनका मैक्सिमम टाइम फिक्स कर रखा है, सपोज 2 मिनट फिक्स कर रखा है, तो तब तक गैस गाड़ियों को निकालता जाएगा निकालता जाएगा निकालता जाएगा, तो काफी ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। अब गैस सेकंड साइड की इधर का रेड लाइट ऑन हुआ और गैस सेकंड साइड का आप लोगों का ग्रीन लाइट ऑन हुआ। अब गैस सेकंड साइड में वो 5 सेकंड वेट करेगा और कोई भी गाड़ी अगर पास नहीं हुई तो हाथों हाथ रेड सिग्नल ऑन कर देगा। थर्ड साइड और फोर्थ साइड में भी गैस रेस्पेक्टिवली यही होगा कि कोई गाड़ी नहीं जाएगी तो हाथों हाथ रेड लाइट ऑन हो जाएगी। और इस बार अगेन बहुत जल्दी, जो पहले 40-40 सेकंड वेट करना पड़ रहा था गैस, 2-2 5-5 सेकंड के सिग्नल के वेटिंग के बाद वो रेड सिग्नल हो गए और गैस पहले वाले का नंबर फिर से आ गया। और गैस इस बार वापस ग्रीन लाइट ऑन हुई तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स निकलते रहे, और जितना इसका मैक्सिमम टाइम फिक्स कर रखा है ताकि अदर साइड में ट्रैफिक जाम ना हो गाइज, उतने टाइम तक ये गाड़ियों को पास करेगा। तो गाइज बताओ, ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है फॉरेन कंट्रीज में।
सोचो वहां पर सेंसर लगे हुए हैं जो जहां पर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा वो उसको उतना ज्यादा टाइम देते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो गैस बताओ, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में अपना एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ कंट्रोल सिस्टम का अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक सिग्नल इज विच वन सिस्टम, तो गैस आपका आंसर फॉरेन कंट्री में एग्जाम दे रहे होंगे तब क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम। और गाइज इंडिया में एग्जाम दे रहे हो तो क्या दोगे, तो हमारे इंडियन ट्रैफिक सिग्नल गाइज कौन सा सिस्टम है, हमारा ओपन लूप सिस्टम है। अब मेरा मेन क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनना गाइज। मुझे बताओ गाइज, हमारे यहाँ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यानी कि क्लोज लूप ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं है, हमारे यहाँ सेंसर क्यों नहीं लगे हुए हैं? बिकॉज वी नो दैट गाइज कि हमारे यहाँ ये सक्सेसफुल है ही नहीं। अगर हम लोगों ने लगा भी दिया तो गाइज क्या होगा कि 5 में से जनरली क्या होगा, पहले दिन दूसरे दिन 5 दिन अच्छे से रहे सेंसर, छठे या सातवें दिन कोई ना कोई सेंसर खराब हो जाएगा। क्यों? कोई ना कोई सेंसर खराब हो जाएगा, कोई ना कोई सेंसर डैमेज हो जाएगा किसी न किसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है वो इतने अवेयर नहीं है। तो किसी ने जानबूझ के उसको डैमेज कर दिया या कोई और किसी पर्टिकुलर रीजन से। और सबसे मेन, हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ खड़ी कहाँ होती है, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। हमने सब कुछ सही किया गाइस, कितना भी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को अच्छा कर लो, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कह सकते हो कि अवेयरनेस थोड़ी कम होने की वजह से गाइस थोड़ा सा इशू रहेगा। एजुकेशन सिस्टम भी हमारे यहाँ थोड़ा पुअर है, तो कोई भी जो है वो अपने मन मर्जी से जो है वो उसको डैमेज भी कर सकता है। अब सोचो गाइस, 5 में से 4 सेंसर खराब कर दिए किसी वजह से, अब बताओ सेंसर कितना बचा, सिर्फ एक। सपोज गाइज ट्रैफिक सिग्नल में वही कंडीशन में अप्लाई कर दूं जहां से एक जगह से ट्रैफिक आ रहा है, मान लो उस जगह से गाइज अब गाड़ियां पास होगी तो एक ही सेंसर काम कर रहा है, तो वो क्या काउंट करेगा कि यार एक दो ही गाड़ियां पास हो रही है, तो गाइज वो हाथों हाथ रेड सिग्नल ऑन कर देगा और बाकी जगह से तो गाड़ियां पास करेगा, और इधर क्या है जहाँ सेंसर खराब हो गए गाड़ी, गाइज वहां पर हमारे पास ट्रैफिक जाम कर देगा वो। तो गाइज इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि सेंसर का मेंटेनेंस, सेंसर का रखरखाव बहुत ही दिक्कत वाला होता है। तो गाइज बताओ, हमारे यहाँ चलने लायक, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, ओपन लूप, क्योंकि हमारे यहाँ एक जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है तो लोग वक्त कुछ समझदार है, निकल लेते हैं खुद ही क्या कर लेते हैं कि ठीक है इधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही, चलो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले खुद आकर ट्रैफिक इस तरह से क्लियर करवा देते हैं कि जिधर से गाड़ियां नहीं आ रही उधर से छोड़ के जिधर से गाड़ियां आ रही है उधर ट्रैफिक को क्लियर करवा देते हैं। तो गाइज बताओ, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, ओपन लूप सिस्टम ट्रैफिक सिग्नल में। तो गाइज ध्यान रखना, ओपन लूप ही हमेशा स्टेबल होता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ या लंबे समय तक रहने की बात करूँ तो गाइज बताओ लंबे समय तक कौन सा सिस्टम चलेगा, ओपन लूप सिस्टम अच्छे से चलेगा। तो गाइज बताओ, ओपन लूप सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, सर ओपन लूप सिस्टम मोर स्टेबल होता है, यानी लंबे समय तक रहेगा। और गाइस बताओ, क्लोज लूप सिस्टम में सेंसर लगा होता है, सेंसर खराब तो कहानी खराब, कहानी खराब यानी सिस्टम क्या हो जाएगा गाइस, अनस्टेबल हो सकता है। तो गाइस हम लोग अनस्टेबल तो नहीं लेकिन लेस स्टेबल कहेंगे, क्योंकि इसमें सेंसर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, हम लोगों ने कितनी कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है, दोनों की 3 प्रॉपर्टीज लिखी है। आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे गाइस बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो गाइस हम लोग इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। दोनों में 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, है ना। सेंसिटिविटी आएगा, नॉन लीनियरिटी हम लोगों ने लिख लिया है, एक्यूरेसी लिख लिया है, स्टेबिलिटी लिख लिया है, बैंडविड्थ आएगा, कई सारी चीजें आएंगी। तो गाइज फिलहाल हमने 3 3 पॉइंट लिखे हैं। गाइज मुझे एक बात बताओ, क्लोज लूप सिस्टम के पास सारी चीजें अच्छी है, बताओ एक्यूरेसी क्या है, अच्छी है, लीनियरिटी क्या है, अच्छी है, यानी ये 2 चीजें तो बहुत अच्छी है। बट ये तीसरी चीज, एक चीज गड़बड़ हो रही है, बताओ क्या गड़बड़ हो रही है, सर ये सिस्टम की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कमजोर है। तो गाइज बताओ, क्लोज लूप सिस्टम हर चीज में अच्छा था सिर्फ स्टेबिलिटी को छोड़कर। इसी वजह से गाइज हम पूरे कंट्रोल सिस्टम में टोटल 7 चैप्टर पढ़ेंगे और 7 चैप्टर में से गाइज 4 चैप्टर तो सिर्फ किसके बारे में गाइज, स्टेबिलिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें क्लोज लूप सिस्टम में सबसे मेन जो काम करना है गाइज वो करना ही किस पर है, स्टेबिलिटी पर, क्योंकि किसी भी क्लोज लूप सिस्टम की सबसे मेन बड़ी कमी कौन सी है, स्टेबिलिटी। तो गाइज हम लोग तो उसी पर काम करेंगे जो हमारी सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। तो गाइज बताओ, ओपन लूप और क्लोज लूप में सबसे बेहतर कौन है, क्लोज लूप। बट क्लोज लूप के साथ दिक्कत सिर्फ किसका है, स्टेबिलिटी का। तो गाइज आप लोगों को हर कदम पर इस बात का ध्यान रखना है, हर चैप्टर में हर जगह, कि सिस्टम स्टेबल जो है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। गाइज स्टेबल तो होता ही है, हम लोग हर जगह स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और सिस्टम को अनस्टेबल होने से बचाएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा गाइज। इफ इट इज क्लियर तो गाइज पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें गाइज।
टेकन गाइस? फर्स्ट पेज क्लियर? या आप लिख भी सकते हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लेने नोट बना सकते हैं आप लोग। टेकन? ओके, यहाँ जाए सेकंड पेज पे। तो गाइज अब क्लोज लूप सिस्टम पढ़ना है, सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट अभी दिलाएंगे। एक काम कीजिए, आप ले लीजिए, देन हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज ये तो कंट्रोल सिस्टम का मैंने बताया सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए गाइज, स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइज। गाइस ध्यान रखें, हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम कॉजल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। कॉजल का मतलब जिसका इनिशियल कंडीशन क्या होगा गाइस? 0 होगा। टेकन गाइस? इज इट? आई थिंक इट इज। पुष्पक के अलावा किसी का आंसर नहीं आया है। स्क्रीनशॉट टेकन गाइस? पहले बताएं यहां से कोई क्वेरी है क्या गाइस? ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, देन वी विल स्टार्ट द कंट्रोल सिस्टम। इज देयर एनी क्वेरी गाइस? आप बोल के भी बता सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए इफ देयर इज एनी इशू और एनी क्वेरी इन दिस टॉपिक, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल सिस्टम, ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप। क्लियर एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे पास ये दो सिस्टम हो गए, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब गाइज ये जो ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम है, इनके बेसिस पे गाइज हम लोग कंट्रोल सिस्टम को गाइज 7 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे गाइज, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1। तो गाइज आज अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाकी फिर फर्स्ट चैप्टर गाइज हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, है ना गाइज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको पूरा कंट्रोल सिस्टम का देखना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। गाइज कंट्रोल सिस्टम इज टू मच इंपॉर्टेंट, पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। मैथमेटिक्स अच्छी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स अच्छी नहीं भी होगी तो मैं करवा दूंगा आप लोगों की, लेकिन मैथमेटिक्स पर काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेटर अपने साथ लेकर बैठे हमेशा, ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा क्लास में। बस आप लोगों को किसी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर माइक का इशू है, कैमरे का इशू है, इस तरह की कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, ठीक है। ये जो आज मेरा फोटो नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि कल से विजिबिलिटी भी आ सके, ठीक है ना, क्योंकि अ, थोड़ा सा कम टाइम के अंदर क्लास अरेंज की गई थी आप लोगों की, तो कल से हम ये कोशिश करेंगे शायद कैमरा भी ऑन हो जाए, ठीक है ना। वॉइस वगैरह का इशू थोड़ा सा और ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया जाएगा, बट अगर ऐसा कोई इशू आता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं। और सबसे मेन गाइज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, आप उन सबको बताओ। मैंने आज इसीलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया कि सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर इसलिए कल स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आओगे, ठीक है ना। क्योंकि गैस जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, और जब पढ़ाने में मज़ा आएगा ना तो ये मानो कि कंटेंट बहुत शानदार आएगा। मतलब आप लोगों को कहीं किसी अदर जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है गाइस। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि कॉलेज टाइम पर आप लोगों को इस टाइम पर टोटली सब कुछ फ्री मिल रहा है। हमारे टाइम पर कुछ नहीं मिलता था, तो हम लोग तो ये सोचते थे कि जो है वो कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। तो आप लोगों को सारा का सारा कंपटीशन एग्जाम का सारा कंटेंट एक साथ मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को लाओ, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतना बहुत अच्छा मटेरियल आएगा, ठीक है ना। और आप देखोगे कि कंट्रोल सिस्टम के 7 चैप्टर हैं, 7 के 7 चैप्टर बहुत शानदार निकलने वाले हैं। देखो गाइस, मैं कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस बताओ कंट्रोल सिस्टम को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे गाइस? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाइस हम कंट्रोल सिस्टम में, थोड़ा सा फनी टाइप में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं हूँ नहीं, दिख नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इसी तरह से पढ़ाना पड़ेगा ताकि आप बोर भी ना हो। गाइस हम लोगों को एक कंट्रोल सिस्टम, एक सिस्टम बनाना है। तो गाइस बताओ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ सिस्टम। क्या लगता है गाइस आपको, ह्यूमन बीइंग इज अ ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम? ह्यूमन बीइंग क्लोज लूप है।
ऑफ कोर्स क्लोज लूप है, बिकॉज वी कैन सेंस एनीथिंग। हमें कोई पिन भी चुभेगा तो हम लोगों को सेंस होता है। हमें जैसा इनपुट दोगे हम वैसा का वैसा आउटपुट नहीं देते देते हैं, यानी किसी ने बोला कि ये बोल दे तो वो नहीं बोल देते, हम लोग सेंस करते हैं चीज़ों को, है ना। जैसा इनपुट दोगे उस अकॉर्डिंग हम सेंस करके हमारा डिजायर्ड आउटपुट देते हैं, ठीक है। अब गाइज ह्यूमन बीइंग एक सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम। गाइज हमें इसे स्टडी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइज। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग को एक सिस्टम मानते हुए उसका एक यूनिक पर्सनैलिटी यानी एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन देंगे। तो गाइज बताओ, हर बंदे का यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसका क्या होता है, डीएनए। और जो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसके अलावा और किसी बंदे का डीएनए उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो हर बंदे का एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, वो होता है उसका डीएनए। हर पर्सन का उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो गैस ध्यान रखना, उस यूनिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कंट्रोल सिस्टम में गैस ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं गैस, ट्रांसफर फंक्शन। तो गैस हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा गैस, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है गैस। तो गैस इस फर्स्ट चैप्टर ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग करेंगे क्या, तो गैस ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब गैस इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिस्टम को दिए गए इनपुट और उससे आए हुए आउटपुट के अकॉर्डिंग, इन दोनों के रेशो से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन को। ट्रांसफर फंक्शन का भी और लेंथी फॉर्मूला गाइस, इसको हम एस डोमेन में निकालते हैं और इनिशियल कंडीशन जीरो लेते हैं, वो सब आपको फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें गाइस, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो पहले मैं लिख ही देता हूँ। एस डोमेन का मतलब गाइस आपको लाप्लास में इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आउटपुट इन एस डोमेन अपॉन इनपुट इन एस डोमेन। गाइज आपको इसे लाप्लास लेकर सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब गाइज ट्रांसफर फंक्शन क्या बताएगा सर, तो गाइज ये किसी भी सिस्टम का यूनिक रिप्रेजेंटेशन करने के काम आता है, ठीक है। अब गाइज इस ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो गाइज आप लोग बताओ, ट्रांसफर फंक्शन जहां पर लिख दिए वहां पर आप सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये बॉक्स है गाइज, गाइज बताओ इस बॉक्स में अभी तक आप फिजिकल सिस्टम लिखते आ रहे थे, गाइज अब आप इसमें ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, उसके ट्रांसफर फंक्शन से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर, उसको दिए गए इनपुट और उससे लिए गए आउटपुट का रेशो निकाल लो सर, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो गाइस बताओ सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब गाइस इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोगों ने निकाल लिया, ट्रांसफर फंक्शन से करेंगे। अब गाइस मैं क्या करूंगा, तो गाइज अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सिस्टम को सेकंड चैप्टर में गाइज मैं इसको अलग अलग टाइप के इनपुट दूंगा गाइज, अलग अलग टाइप के क्या दूंगा गाइज, इनपुट। गाइज जब मैं इस सिस्टम को अलग अलग टाइप के इनपुट दूंगा तो गाइज बताओ अलग अलग टाइप के आउटपुट आएंगे। तो गाइज हम लोगों ने एक ह्यूमन बीइंग लिया, यानी एक ट्रांसफर फंक्शन लिया, सपोज इट इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब गाइज इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे रहा हूँ। गाइज जैसे जैसे मैं इसको इनपुट दूंगा गाइज उसी अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आएंगे। गाइज बताओ आउटपुट को क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं सर। आउटपुट को क्या कहते हैं गाइज, रेस्पॉन्स। और गाइज मैं अपने दिए गए इनपुट के हिसाब से हमारे आउटपुट को गाइज क्या करूंगा, यानी हमारे रेस्पॉन्स को क्या करूंगा गाइज, एनालिसिस करूंगा। कौन से डोमेन में, तो गाइज ध्यान रखना ट्रांसफर फंक्शन तो एस डोमेन में निकलता है, लेकिन एस डोमेन में कभी भी गाइज हम लोग एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस टाइम डोमेन में करते हैं। सर ऐसा क्यों, इसके लिए गाइज मैं बेहतर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को ये बता सकता हूँ। गाइज सपोज आप लोगों को किसी पर्टिकुलर पर्सन की पूरी लाइफ को एनालिसिस करना है, उसके आउटपुट को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आप लोग गाइज ध्यान रखना, जब कभी किसी का रेस्पॉन्स एनालिसिस यानी उसका रेस्पॉन्स निकालते हो, उसका आउटपुट निकालते हो, तो गाइज उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है गाइज ट्रांजिएंट और दूसरा पार्ट होता है गाइज उसका स्टडी स्टेट। ये दोनों नाम आप लोगों ने आई थिंक सुने होंगे गाइज। क्या क्या नाम है गाइज, ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट। ये दो कंपोनेंट होते हैं गाइज हमारे ओवरऑल आउटपुट के। ये लिख देता हूँ 1 मिनट। तो गाइज सेकंड चैप्टर में गाइज बताइए हम लोग हमारे रेस्पॉन्स के कितने पार्टीशन पढ़ेंगे, दो। एक तो है गाइज ट्रांजिएंट और दूसरा गाइज कौन है हमारा, स्टडी स्टेट। दिस इज, अब गाइज ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट में गाइज जो हमारा ट्रांजिएंट वाला पार्ट है गाइज, ट्रांजिएंट किसको कहते हैं, तो गाइज मान लो आपके सर के ऊपर अभी सीलिंग फैन होगा। गाइज इस सीलिंग फैन को आप लोगों ने सपोज गाइज एक इनपुट दिया, ठीक है। आप लोगों ने सीलिंग फैन को गाइज जैसे ही इनपुट दिया तो गाइज बताओ सीलिंग फैन क्या होने लगा, रोटेट होने लगेगा। गाइज बताओ सीलिंग फैन आपका रोटेट होने लगेगा। गाइज बताओ जैसे ही सीलिंग फैन को आप जैसे ही इनपुट दोगे क्या सीलिंग फैन आपका गाइज क्या फुल स्पीड पकड़ लेगा क्या,
ऑन करते ही फुल स्पीड नहीं पकड़ेगा, पहले वो धीरे धीरे रोटेट होना शुरू करेगा, यानी धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। तो गैस बताओ टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। गैस जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गैस उसे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहते हैं। तो गैस बताओ स्विच को जैसे ही आपने ऑन किया तो पहले थोड़ी देर तक वो कौन सी स्टेट में रहेगा गैस, तो पहले थोड़ी देर में रहेगा, थोड़ी देर तक रहेगा गैस वो ट्रांजिएंट स्टेट में, ट्रांजिएंट स्टेट में। ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट। गैस ट्रांजिएंट स्टेट में रहने के बाद कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद गैस फैन आपकी फुल स्पीड पकड़ लेगा, यानी उसकी स्पीड गैस टाइम के साथ क्या हो जाएगी गैस, कांस्टेंट हो जाएगी। और गैस जब उसकी स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तो इसका मतलब फाइनली किस में चला गया, स्टडी स्टेट में। तो गैस बताओ स्टडी स्टेट कब आती है, फाइनल, सबसे लास्ट में। और स्टार्टिंग में क्या रहता है आपका, ट्रांजिएंट। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट। तो गाइस बताओ किसी भी सिस्टम को जब आप इनपुट देते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट दिया था, इनपुट दिया था गाइस, बताओ इनपुट देते हैं उसके आउटपुट आया। तो गाइस जैसे हमने सीलिंग फैन को इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया कि फैन ऑन हुआ और स्टार्ट होना शुरू कर दिया, यानी रोटेट होना स्टार्ट कर दिया। गाइस स्टार्टिंग में स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी। तो गाइस जब वो अपनी स्पीड टाइम के साथ बढ़ा रहा होगा यानी चेंज कर रहा होगा, तो गाइस उसे हम लोग कौन सा रिस्पॉन्स कहते हैं, ट्रांजिएंट। और गाइस जब वो फाइनली अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट होगा, तो गाइस वो चला जाएगा स्टडी स्टेट में। बहुत बढ़िया। अब गाइस ये जो ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट आपने फैन की निकाली है, गाइस इस ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट में आप लोग अपने रेस्पॉन्स में क्या क्या चेक करते हो। तो गाइस मुझे बताओ जब आपने फैन को ऑन किया तो आप क्या चाहते थे, फैन जल्दी से जल्दी ऑन हो जाए यानी ये फुल स्पीड पकड़ ले कि लेट पकड़े। तो हम लोग चाहते हैं सर जल्दी से जल्दी फैन अपनी फुल स्पीड पकड़ ले, हम तो यही चाहते हैं। तो गाइस बताओ ट्रांजिएंट आप लोग हमेशा चाहते हो कि सिस्टम में कम से कम समय के लिए रहे और हमें जल्दी से जल्दी गाइस स्टडी स्टेट यानी फाइनल वैल्यू मिल जाए। तो गाइस ध्यान रखना ट्रांजिएंट टाइम पीरियड में आप लोग चार चीजें कैलकुलेट करते हो, एक राइज टाइम, एक टाइम और एक पीक ओवरशूट। ये चार कंपोनेंट गाइस मैंने अभी इनके नाम नहीं लिखवाए हैं, अभी मैंने इनका सिर्फ नोटेशन लिखवा दिया क्योंकि सेकंड चैप्टर में हम लोगों को इन्हें डिटेल में डिस्कस करना है गाइस, ठीक है। तो गाइस क्या क्या नाम है, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम और पीक ओवरशूट। क्या होते हैं ये हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। मुझे इतना बताओ कि ये जितने भी टाइम है गाइस, ये जितने भी टाइम है गाइस बताओ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कम से कम समय के लिए रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, यानी गाइस बताओ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कम से कम समय के लिए रहना चाहिए, यानी ये सब के सब टाइम पीरियड या पीक ओवरशूट वगैरह ये सब क्या होने चाहिए गाइस, ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम। तो गाइस ये सब के सब होने चाहिए सिस्टम में कम से कम टाइम के लिए, यानी कम से कम वैल्यू होनी चाहिए इनकी, ठीक है। व्हाट अबाउट द स्टडी स्टेट। तो गैस ध्यान से सुनना, स्टडी स्टेट यानी जब हम लोग फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, तो गैस ध्यान रखना फाइनली हम लोग सिस्टम में सिर्फ एरर निकालते हैं, किया था क्या वैसा का वैसा आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है क्या। तो गाइज हम लोग स्टडी स्टेट यानी फाइनली गाइज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एरर चेक करते हैं और गाइज एरर को ई से डिनोट करते हैं। और स्टडी स्टेट में निकाली गई है, इसलिए गाइज इसको एस एस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, ई एस एस। ई एस एस का मतलब गाइज कौन सी एरर, स्टडी स्टेट एरर। तो गाइज आपके पास ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में दो चीजें हैं, चार चीजें हैं, टी आर, टी पी, एम पी टी एस। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ तो ध्यान से सुनना गाइज। राइज टाइम का मतलब होता है वो टाइम जब हमारा आउटपुट पहली बार अपनी डिजायर्ड वैल्यू अकर करे, तो उसे राइज टाइम कहते हैं। जब हमारा आउटपुट पहली बार अपनी कौन सी वैल्यू अकर करेगा गाइस, डिजायर्ड वैल्यू, तो उसे कौन सा टाइम कहते हैं गाइस, राइज टाइम। पीक टाइम क्या होता है, तो गाइस जब हमारा आउटपुट पहली बार अपनी पीक वैल्यू अचीव करे। इसको ऐसे समझते हैं, देखो गाइस सपोज ये आपका लाइफ का ग्राफ है, ठीक है। गाइस सपोज आप लोग अभी तो पढ़ ही रहे हो, सपोज गाइस आप लोगों का ये एक सैलरी है जो आप लोगों को फाइनली अकर करना है, ठीक है। ध्यान से समझना गाइस, कितनी लिखते हैं बताओ, कितनी चाहिए आप लोगों को सैलरी। हम्म तो मंथली 2 लाख कर दें अभी प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से कि सर 4-5 साल में 2 लाख रुपए मान लो सैलरी का आता था, कि आपको मंथली 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए। अब गैस बताओ आप लोगों ने अभी अभी जो है वो पढ़ाई करी अच्छे से और जॉब वॉब लगी, तो गैस जॉब में आप लोगों की सैलरी जो थी वो ऐसे बढ़ रही थी, ऐसे बड़ी 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 बड़ी, गैस 2 लाख भी क्रॉस कर जाएगी एक दिन और ऊपर चली गई। अब गैस मान लो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तो प्राइवेट नौकरी में जितनी जल्दी सैलरी बढ़ रही है बताओ उतनी जल्दी नीचे भी आएगी।
फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। गाइज इस तरह से चलता रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो गाइज बताओ, जब पहली बार आपने अपनी डिजायर्ड सैलरी 2 लाख रुपए टच की थी गाइज, इसी टाइम को गाइज हम लोग कौन सा टाइम कहते हैं? राइस टाइम। कौन सा टाइम गाइज? राइस टाइम। गाइज आपने जब पहली बार अपनी पीक वैल्यू अचीव करी थी, यानी कि 2 लाख के ऊपर सैलरी पे गए थे, तो गाइज बताओ उसको कौन सा टाइम कहेंगे गाइज? पीक टाइम। गाइज बताओ, ये सैलरी के फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जब फाइनली आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, यानी आप सेटल हो जाओगे, तो इसे गाइज सेटलिंग टाइम कहेंगे। जब आपकी सैलरी में ज़्यादा वेरिएशन होना रुक जाएगा, या आप कह सकते हो गाइज आप रिटायर हो चुके हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी गाइज? लगभग फिक्स हो जाएगी, फिर ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह नहीं चलेंगे, है ना? ठीक है, तो गैस बताओ कितने टाइम है? राइस टाइम जब आपको पहली बार अपनी डिजायर्ड वैल्यू यानी डिजायर्ड सैलरी मिलेगी। पीक टाइम जब आपको पहली बार अपनी पीक वैल्यू मिलेगी। और सेटलिंग टाइम जब आपको फाइनली अपनी फाइनल सेटल्ड वैल्यू मिल जाएगी। अब गैस ये जो आपका पीक वैल्यू है ना, सपोज 2.5 लाख रुपए सैलरी गई थी आपकी पीक, और गैस ये है 2 लाख रुपए। गैस 3 लाख, ये 2.5 लाख और 2 लाख के बीच का जो यानी पीक और डिजायर्ड के बीच का ये जो डिफरेंस है ना गैस, इसी को पीक ओवरशूट कहते हैं। पीक ओवरशूट का मतलब एमपी, पीक ओवरशूट। गैस क्या लगता है आपको, ये ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो गैस ये कम होना चाहिए। क्यों सर, सैलरी पीक ज़्यादा जा रही है तो अच्छा है ना? नहीं बेटा, क्योंकि अगर ये सैलरी जो है अगर ज़्यादा पीक चली गई, तो दोबारा जब लौट कर आएगी तो गैस जितना ज़्यादा ऊपर जाएगी और फिर वहाँ से लौट कर आएगी ना, दुख उतना ज़्यादा होगा। तो गैस ध्यान रखना, पीक ओवरशूट लाइफ में ओवरशूट्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए, उतार चढ़ाव कम होने चाहिए। लाइफ हम लोग इतना पढ़ते क्यों गवर्नमेंट जॉब के लिए? तो गाइज लाइफ होनी चाहिए एकदम सेटल, और हमारे उतार चढ़ाव यानी कि ओवरशूट होनी चाहिए गाइज कम से कम। तो गाइज बताओ आपका एमपी भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। गाइज बताओ आप क्या चाहते हो लाइफ में? राइस टाइम यानी कि पहली बार 2 लाख रुपए सैलरी लेट से लेट मिलेगी, जल्दी से जल्दी मिले, जल्दी से जल्दी मिले। तो गाइज बताओ राइस टाइम भी क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। गाइज बताओ आप क्या चाहते हो? आपकी पीक सैलरी भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी, लेट से लेट आए? तो गाइज आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो गाइज बताओ पीक टाइम भी क्या होता है? कम से कम होता है। और गाइज नेक्स्ट है आप लोगों का सेटलिंग टाइम। तो गाइज बताओ सेटलिंग टाइम भी क्या होगा आपका? कम से कम होगा, क्योंकि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आप लोग सेटल हो जाओ लाइफ में, ठीक है। तो गाइज मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। गाइज बताओ जब आप लोग बुढ़ापे में पहुंच जाते हो, या आपकी सैलरी जो है वो फिक्स हो जाती है, आप रिटायर हो जाते हो, तो फाइनली गाइज बताओ स्टडी स्टेट में जाने के बाद आप क्या करते हो? बेटे बेटे एरर निकालते हो, ठीक है ना? क्या निकालते हो गाइज? आप लोग एरर निकालते हो कि मैंने कितना इनपुट दिया था, कितना मैंने अपना इनपुट दिया था, कितना पढ़ाई किया था, कंट्रोल सिस्टम को कितना मन लगाकर पढ़ा था एंड ऑल दैट। और फाइनली जब आप रिजल्ट देखते हो, तो फाइनली जब आप इनपुट दिए थे और जो आपका आउटपुट आया यानी जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर करते हो। गाइज आप क्या चाहते हो? आपने जितना इनपुट दिया था, तैयारी करी थी, आपका रिजल्ट यानी आपका आउटपुट भी उतना ही आना चाहिए। अगर कम आया तो एरर ज़्यादा आ रही है सिस्टम में, तो आप लोगों को बहुत दुख होगा। तो गाइज बताओ, हम लोग हमेशा जितना इनपुट दिए उतना ही आउटपुट चाहते हैं। उसके लिए गाइज आपका इनपुट और आउटपुट सेम होने पर एरर जीरो होगी। तो गाइज आप लोग जो हैं वो स्टडी स्टेट यानी फाइनली क्या चेक करते हैं गाइज? सिस्टम में एरर चेक करते हैं, ठीक है गाइज। गाइज बताओ, फर्स्ट चैप्टर हमने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा, और सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने उसे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देकर उसके आउटपुट चेक किए, आउटपुट का अंदर रेस्पॉन्स चेक किया। और गाइज उसको बताओ हमने कौन से डोमेन में एनालिसिस किया? टाइम डोमेन में। कौन से डोमेन में गाइज? टाइम डोमेन में एनालिसिस किया, ठीक है गाइज। अब गाइज हम लोगों ने इसको टाइम डोमेन में एनालिसिस कर लिया और इसकी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को चेक कर लिया। अब गाइज ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। गाइज बताओ आप क्या चाहते हो कि सर हमारा थर्ड चैप्टर, गाइज हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा राइस टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम ये कम से कम आए, और स्टडी स्टेट एरर भी गाइज आप क्या चाहते हो? सर कम से कम आए, हम यही चाहते हैं, ठीक है। अब ये तो हम चाहते हैं बट मिलता थोड़े ना है। तो गाइज हुआ क्या कि अगर ये सबके सब वैल्यू टी आर, टी पी, एम पी, टी एस और आपका स्टडी स्टेट एरर ये सबकी सब वैल्यू कम आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। बट गाइज अगर इनकी वैल्यू, इनमें से एक भी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, या इनमें से टी आर, टी पी, एम पी, टी एस या स्टडी स्टेट एरर में से किसी की भी वैल्यू गाइज इंक्रीज हो रही है, तो हम लोगों को फिर उस केस में इस सिस्टम में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो गाइज अगर टी आर, टी पी, एम पी, टी एस या हमारे स्टडी स्टेट एरर की कोई भी वैल्यू गाइज अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज करती है, तो गाइज हम लोग सिस्टम को क्या करेंगे? या तो गिटार लेकर गाना गाएंगे, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज, और जोए की तरह लटक जाएंगे। तो वो तो करना नहीं है। तो गाइज हम लोग तो इंजीनियर हैं,
हम लोग तो आमिर खान बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रणछोड़ दास बनने के लिए हम लोग उस सिस्टम को कच्चे के डब्बे में से उठाएंगे और उसमें जुगाड़ लगाएंगे, और जुगाड़ लगाकर उसकी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को गाइस क्या करेंगे, हम लोग इंप्रूव करेंगे। तो गाइस बताओ, जब कभी ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस में से कोई परफॉर्मेंस बेकार हो जाए यानी डिस्टॉर्ट कर जाए, तो गाइस उसे इंप्रूव करने के लिए हम लोग रणछोड़ दास बनकर उसमें जुगाड़ लगाते हैं, और गाइस उसी जुगाड़ को हम लोग कंट्रोलर कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं गाइस, कंट्रोलर कहते हैं। तो गाइस बताओ, कंट्रोलर हमारी कौन सी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए है, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को। तो गाइस थर्ड चैप्टर हम लोग कंट्रोलर पढ़ेंगे। गाइस कंट्रोलर चैप्टर में गाइस हम लोग 3 बेसिक कंट्रोलर पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर। 3 कंट्रोलर पढ़ने हैं गाइस, ठीक है, प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। गाइस जब हम इन तीनों को अकेले अकेले पढ़ेंगे तो ये कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बट गाइस जब हम इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे गाइस हम प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव को कंबाइन करेंगे, किसको, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव को कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव को गाइस आप लोग कंबाइन करेंगे। तो गाइस ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में कहेंगे हम लोग पीडी कंट्रोलर। तो गाइस ध्यान रखना, ये कंट्रोलर हमारा ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के काम आएगा। यानी हमारी कौन सी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा गाइस, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इंप्रूव। ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड। क्लियर होगा गाइस। अब ये कैसे करेगा वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसी तरह से गाइस हम लोग प्रोपोर्शनल के साथ इंटीग्रल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल के साथ गाइस हम लोग इंटीग्रल को, कंट्रोलर को यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल यानी कि पीआई कंट्रोलर जिसे हम लोग कहेंगे गाइस। गाइस ये हमारी स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, इंप्रूव करेगा स्टडी स्टेट को। तो गाइज ये हमारा मेन कंट्रोलर होंगे जो आने वाले टाइम पर। और गाइज बताओ, अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं यानी पीआईडी कंट्रोलर बना दूं, पीआईडी, तो गाइज वो तो हमारा सबसे बेस्ट कंट्रोलर होगा। क्योंकि गाइज बताओ, अगर तीनों मिल गए तो दोनों परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट, बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइज। तो गाइज बताओ, हम लोग सीक्वेंस वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला ट्रांसफर फंक्शन यानी हमने सिस्टम को डिफाइन किया। दूसरे चैप्टर में गाइज हम लोगों ने इस ट्रांसफर फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गाइज इनपुट देकर हम लोगों ने इसका आउटपुट यानी रेस्पॉन्स निकाला टाइम डोमेन में और उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस 2 किए गाइज, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट। अगर गाइज ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट एनालिसिस अच्छे आ रहे हैं तो ठीक, अगर इनमें कोई दिक्कत है तो हमने कंट्रोलर लगा के उस दिक्कत को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चौथा चैप्टर गाइस, जब पूरा सिस्टम बना दिया, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर ली और कंट्रोलर लगा के सुधार दिया, ठीक है। अब गाइस फाइनली हम लोग इस सिस्टम की क्या चेक करेंगे, तो पूरा सिस्टम एकदम बढ़िया से अच्छे से तैयार है गाइस। अब हम लोग इसकी चेक करेंगे गाइस स्टेबिलिटी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेबिलिटी है, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी गाइस, तो मैंने यहाँ बताई थी आपका स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल होता है ये। तो गाइस बताओ, हम सिस्टम की फाइनली क्या चेक करते हैं गाइस, स्टेबिलिटी। अब गाइस इस चौथे चैप्टर में हम लोग स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए गाइस 2 मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड हमारे पास होगा गाइस राउथ हर्विट्ज या राउथ एरे आप कह सकते हैं। गाइस इस राउथ एरे वाले मेथड में हम लोग, ये हमारी गाइस स्टेबिलिटी निकालने का गाइस मैथमेटिकल अप्रोच होता है। कौन सा अप्रोच गाइस, मैथमेटिकल अप्रोच होता है ये हमारे स्टेबिलिटी निकालने का। दिस विल बी आवर मैथमेटिकल अप्रोच टू फाइंड द स्टेबिलिटी। गाइस इसके अलावा आप लोग एक और मेथड यूज करेंगे, रूट लोकस। शायद आप लोगों ने कॉलेज टाइम पे सुना हो इसका नाम, रूट लोकस। गाइस ध्यान रखना, ये हमारा ग्राफिकल मेथड है गाइस स्टेबिलिटी निकालने का, ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल अप्रोच। तो हम ग्राफ बनाकर गाइस इससे हम लोग स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो गाइस बताओ, स्टेबिलिटी चैप्टर में हम लोगों को कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो गाइस 2 टॉपिक पढ़ने हैं, राउथ एरे एंड रूट लोकस। तो गाइस बताओ, क्या ये पूरा सिस्टम डिजाइन है क्या आप लोगों की रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से? बिल्कुल, ये चारों चैप्टर एकदम ओवरऑल सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। तो गाइस बताओ, पहले चैप्टर में आपने सिस्टम निकाला, सेकंड में आप लोगों ने उसको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देकर आउटपुट यानी रेस्पॉन्स को गाइस टाइम डोमेन में एनालिसिस किया,
थर्ड चैप्टर में गाइज आपने उसकी टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस यानी कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया कंट्रोलर लगा के, सब कुछ चीजें ठीक है। और चौथा फाइनली आपने उसकी गाइज स्टेबिलिटी चेक कर ली। ठीक है गाइज। अब गाइज ये पूरा का पूरा जो चारों चैप्टर है गाइज, ये हमारे टाइम डोमेन या आप इन्हें एस डोमेन कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा डोमेन कह सकते हैं गाइज, तो मैं इसको ये कह देता हूँ गाइज, ये हमारे कौन से डोमेन में ओवरऑल सारा चारों चैप्टर हो गए गाइज, ये हमारा टाइम डोमेन या एस डोमेन में। अब गाइज कौन एंट्री मारने वाला है, तो गाइज आपके आधा कंट्रोल सिस्टम यहाँ हो जाता है। अब गाइज इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले डन करें आप मुझे, तो गाइज फिर मैं पांचवें चैप्टर पे चलूंगा। तो गाइज ये पूरी कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है। और पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है गाइज? इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी क्वेरी इन दिस पार्ट, so that we will go further? Clear everyone? स्क्रीनशॉट लेके डन करें, स्क्रीनशॉट ले लें गाइस, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। डन गाइस? ओके गाइस, माय वॉइस इज क्लियर टू यू एवरीवन? Is my voice is clear everyone? Okay, only Akansha is replying, no one else. Other guys, everyone? Okay, okay, okay. अरे बोलते रहो भाई, है ना, बताते रहो कि हाँ हैं सर। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गाइस जो हमारा पांचवा चैप्टर होगा वो थोड़ा सा अलग है, किस हिसाब से, ध्यान से समझना। सो गाइस फिफ्थ चैप्टर किसके लिए बनाया गया, तो गाइस ये बनाया गया हमारे आजकल के जो नए कंसेप्ट, सुना होगा नाम, मॉसफेट सुना होगा गाइस आप लोगों ने नाम। गाइस मुझे बताओ, ये जो आईजीबीटी है, मॉसफेट है, बीजेटी है, स्पेशली आईजीबीटी और मॉसफेट बहुत काम कर रहे हैं आजकल। गाइस ये हमारे हाई फ्रिक्वेंसी एलिमेंट होते हैं, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब सर, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब गाइस ये मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज पर काम करने वाले लोग हैं। एलिमेंट कौन से हैं गाइस, ये हमारे मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज पर काम करने वाले एलिमेंट्स हैं। गाइस इतने हाई फ्रिक्वेंसी के एलिमेंट को गाइस अगर मैं इनका टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो 1/f इज द टाइम पीरियड्स फॉर्मूला गाइस, t बराबर 1/f। गाइस बताओ फ्रिक्वेंसी यानी मेगा हर्ट्ज अगर मैं यहाँ रखूँ 10⁻⁶, तो गाइस बताओ ये 10⁻⁻⁶ सेकंड आएगा। इट मीन्स गाइस टाइम की बात करूँ तो गाइस टाइम चला जाएगा माइक्रो सेकंड में। अब गाइस बताइए, माइक्रो सेकंड में अगर मैं किसी चीज को स्टडी करता हूँ तो क्या आप ये वाला ग्राफ बना सकते हो माइक्रो सेकंड में, ये वाला नहीं बना सकते। यानी आप इस किसी सिस्टम का जो आईजीबीटी या मॉसफेट जिनमें इंक्लूड हो गाइस, उनमें टाइम पीरियड उनका माइक्रो सेकंड में होगा, तो गाइस आप उनका ये वाले डायग्राम्स बना सकते हो क्या, यानी उनका राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम आप मेजर कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि गाइस इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में कब राइज टाइम आया, कब पीक टाइम आया, कब सेटल हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा। तो गाइस इसका मतलब हम लोग हमारे आईजीबीटी मॉसफेट वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को स्टडी करने के लिए, यानी आज के टाइम पर जितनी भी हाई स्पीड डिवाइसेस हैं गाइस, उनको स्टडी करने के लिए आप टाइम डोमेन का यूज नहीं कर सकते। तो फिर इनको कैसे यूज किया जाए सर, तो गाइस माइक्रो सेकंड में यूज ना करके गाइस हम लोग इनके सारा एनालिसिस मेगा हर्ट्ज में करते हैं। मेगा का मतलब 10⁻⁶ वगैरह में। तो गाइस बताओ यहाँ पर हमारे पास हाई वैल्यू किसकी है, टाइम की कि फ्रीक्वेंसी की, तो आप देख सकते हैं गाइस हमारे पास यहाँ वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। तो गाइस बताओ सारा एनालिसिस गाइस यहाँ किस में चलेगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में चलेगा। तो गाइस ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, हाई स्पीड एलिमेंट है गाइस, उनका पूरा एनालिसिस, पूरा स्टडी गाइस हम लोग कौन से डोमेन में करते हैं गाइस, हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं। इसलिए गाइस हमारा पांचवा चैप्टर जो है वो हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस पे ही बात करेगा। कौन सा एनालिसिस गाइस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। जैसे ऊपर टाइम डोमेन एनालिसिस था, टाइम रिस्पांस एनालिसिस, वैसे ही गाइस यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। गाइस फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में भी आप लोग दो मेथड यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने यहाँ किए ना गाइस,
ये आपके स्टेबिलिटी में राउथ एरे, रूट लोकस, वो टाइम डोमेन के थे। गाइस फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप लोग पहला पार्ट आप लोग जो सॉल्व करते हैं गाइस वो है बोडे प्लॉट। तो गाइस हम लोग बोडे प्लॉट वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, बोडे प्लॉट बनाना सीखेंगे। गाइस इस पर्टिकुलर बोडे प्लॉट में हम लोग गाइस स्टेबिलिटी निकालेंगे, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन एंड ऑल दैट, ये सब कैलकुलेट करते हैं हम लोग। गाइस ये हमारी स्टेबिलिटी निकालने की या पूरे फ्रीक्वेंसी डोमेन को पढ़ने का गाइस ये मैथमेटिकल अप्रोच होता है। कौन सा अप्रोच गाइस? दिस इज अवर मैथमेटिकल अप्रोच। और गाइस बोर्डे क्या गाइस? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। इसके लिए गाइस हम लोग पोलर प्लॉट डिजाइन करते हैं एंड ऑल दैट। तो गाइस इससे हम हमारा ग्राफिकल अप्रोच मान के चलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ने के लिए। कौन सा अप्रोच गाइस? ग्राफिकल अप्रोच। तो गाइस बताओ, जैसे ऊपर हमारा राउथ एरे और रूट लोकस था, वैसे यहाँ बोर्डे प्लॉट और कौन है गाइस? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। बहुत बढ़िया गाइस, ये सारा का सारा फ्रीक्वेंसी डोमेन चला। अब गाइस इस फ्रीक्वेंसी डोमेन के बाद हम लोग 6 चैप्टर क्या पढ़ेंगे? तो गाइस फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी गाइस अगर किसी तरह की कोई गलती पाई जाती है या कोई कमी पाई जाती है, तो जैसे गाइस ऊपर हम लोग टाइम डोमेन में कोई भी कमी पाई जाने पर 3rd चैप्टर यानी कंट्रोलर पढ़ते थे गाइस। गाइस इन द सेम पैटर्न गाइस हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन कोई यहाँ हम कंट्रोलर नहीं कंपनसेटर कहते हैं। The transfer function is defined in frequency domain, so module 1 is also frequency domain ना। ट्रांसफर फंक्शन गाइस फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं है, एस डोमेन में। देखो ट्रांसफर फंक्शन ये लिखा हुआ ना, आउटपुट इन एस डोमेन एंड इनपुट इन एस डोमेन। गाइस आप एस डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकते हो और फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में भी जा सकते हो। सर कैसे? तो गाइस इसके लिए हमारे पास एस डोमेन का फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। ये पढ़ा है आप लोगों ने? ये एस डोमेन है हमारे पास, और ओमेगा का मतलब कौन सा डोमेन है? फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो गाइज बताओ, और गाइज अगर मैं एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाना चाहता हूँ तो गाइज आप इसका इनवर्स लाप्लास ले लें। एस इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, यस इट इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है गाइज। बट रिमेंबर दिस थिंग कि गाइज जितने भी हमारे आईजीबीटी एंड मॉसफेट है, गाइज बताओ आईजीबीटी मॉसफेट ये इनवर्स लाप्लास लेके गाइज हम लोग इसे टाइम डोमेन में लाते हैं, ठीक है ना? वो तो ठीक है, हो जाएगा। गाइस आईजीबीटी मॉसफेट इन सब में गाइस बताओ फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है कि बहुत ज्यादा? तो आप सब जानते हैं गाइस फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस बताओ जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो सिग्मा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, और एस इज नियर अबाउट टू क्या रह जाएगा गाइस? जे ओमेगा। तो गाइस बताओ आप एस डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ सकते हो? इज इट क्लियर टू यू अनिकेत? Due to the high frequency element that is IGBT and MOSFET, the sigma will be neglected and the S domain will be directly converted into the frequency domain by putting the S is near about to j omega. Aniket, if there is any confusion, then आप mic को unmute करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Is it clear? Okay. ठीक है गाइज, तो यहाँ जाइए। तो गाइज बताइए हमारे पास टाइम डोमेन में हमारे पास गाइस थे कौन? हमारे राउथ एरे और रूट लोकस, ठीक है। और गाइस इस वक्त हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सब गाइस मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा में सिग्मा नेग्लेक्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से। सब फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना गाइस? अब ये जो हमारा कंपनसेटर है गाइस, ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन की कमियों को पूरा करने यानी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आया है। तो गाइस कंपनसेटर जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोलर में मेन दो बताए थे, पीडी और पीआई, वैसे ही गाइस कंपनसेटर भी दो होते हैं। एक होता है लीड कंपनसेटर, ठीक है, और गाइस सेकंड होगा हमारे पास लैग कंपनसेटर। लीड और लैग आप लोगों ने नाम सुने होंगे गाइस। लीड का मतलब जिसमें एंगल हमारा पॉजिटिव हो, और लैग का मतलब जिसमें गाइस हमारा एंगल नेगेटिव हो या पीछे आ रहा हो, लैग कर रहा हो, है ना? ठीक है गाइस, ये जो लीड कंपनसेटर होता है गाइस, जैसे यहाँ पर पीडी कंट्रोलर गाइस हमारा ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, इन द सेम पैटर्न गाइस लीड कंपनसेटर हमारा ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। और गाइस लैग कंपनसेटर हमारी स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। दिस इज, तो गाइस बताओ ये कंपनसेटर चैप्टर हमारा गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपनसेटर से, किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम में कंपनसेटर का वेटेज गाइस काफी ज्यादा रहता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, कंट्रोलर से तो नहीं पूछता है, कंट्रोलर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे छोटा चैप्टर हमारा कंट्रोलर ही होगा। सबसे मेन चैप्टर गाइस आपका ध्यान रखना कंपनसेटर है, क्योंकि आज के टाइम पर आप सबको याद है प्रैक्टिकली हर जगह मॉसफेट और आईजीबीटी यूज हो रहे हैं।
तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हर जगह जितनी भी दिक्कत आ रही है उन सबको कंपनसेटर लगाकर ही हम लोग दूर कर रहे हैं। तो गाइज इन दो टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और गाइज अगर आपको दोनों परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो आप लैग और लीड का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब गाइज बताओ ये आप लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी अभी। तो गाइज मैं यहाँ की कहना चाहूंगा कि ऊपर के 4 चैप्टर तो गाइज आपके टाइम डोमेन में थे, और गाइज ये तो जो 2 चैप्टर हैं गाइज ये हैं हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो गाइज आप आई थिंक मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी डोमेन भी क्लियर होगा। तो गाइज बताएं अभी तक हम लोगों ने टाइम डोमेन में 4 चैप्टर पढ़े हैं और फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2 चैप्टर में उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब गाइज जितने भी सिस्टम आप लोगों ने पढ़े हैं 2 टाइप के, एक टाइम डोमेन गाइज और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन। गाइज ये सारे सिस्टम आप लोगों ने ध्यान रखना हमारी इनिशियल कंडीशन 0 लेते हुए पढ़े, ये इनिशियल कंडीशन 0, ठीक है। यानी आप लोगों ने अभी तक सिस्टम को रेस्ट कंडीशन में ले रखा है। और दूसरा गाइस ध्यान रखना है ये जितने भी आप लोगों ने स्टार्टिंग चैप्टर पढ़े 1 2 3 4 5 गाइस अप टू चैप्टर नंबर 6 गाइस ये सब के सब सिस्टम आपके SISO सिस्टम पर काम करते हैं। SISO का मतलब सर, SISO का मतलब है गाइस सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। आप गाइस इस तरह के सिस्टम में एक टाइम में सिंगल इनपुट देंगे और इससे गाइस आप सिंगल आउटपुट लेंगे। तो गाइस बताइए आप लोग सिंगल इनपुट लेंगे और आप लोग सिस्टम को सिंगल आउटपुट देंगे, इज दैट क्लियर। इसका मतलब सर, इसका मतलब गाइस आप लोग ये कह सकते हो कि हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम की तरह है। गाइस बताओ सुपरपोजिशन थ्योरम में भी आप लोग यही करते हो, क्या करते हो गाइस सुपरपोजिशन थ्योरम में आप लोग, सुपरपोजिशन थ्योरम में गाइस आप लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में आप लोगों ने नेटवर्क पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लीनियर सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं, LTI सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं, LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो गाइस कंट्रोल सिस्टम भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पर ही काम करती है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट का मतलब है गाइस सुपरपोजिशन में अगर आपके पास किसी सिस्टम में एक से ज्यादा सोर्स आ जाते हैं तो गाइस आप उस सिस्टम को एक बार में एक इनपुट दोगे और एक आउटपुट दोगे, बाकी सबको 0 ले लेते हो। यानी जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हो और करंट सोर्स उनको आप लोग गाइस ओपन सर्किट कर देते हैं। गाइस आप आई थिंक मेरे ख्याल से ये फंडा क्लियर होगा सुपरपोजिशन वाला। तो गाइस सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग LTI सिस्टम पे लगाते हैं और LTI सिस्टम में गाइस एक बार में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट को सॉल्व किया जाता है। तो गाइस जितने भी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाले सिस्टम होंगे गाइस हम लोग उसमें यहाँ पर एक बार में एक इनपुट और एक आउटपुट लेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं गाइस आने वाले टाइम पर। तो गाइस ध्यान रखना चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग SISO सिस्टम को यूज करते हैं, यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम को गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट गाइस इस अप टू चैप्टर नंबर 6 तक गाइस हम लोग जितने भी हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग गाइस इनिशियल कंडीशन को भी 0 लेकर चलते हैं। कौन सी कंडीशन को गाइस, इनिशियल कंडीशन को भी आप लोग 0 लेकर चलते हैं। तो गाइस ये 2 कंडीशन आप लोगों की अप टू चैप्टर नंबर 6 तक हमारे पास है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 जो बनाया गया है गाइस वो इन दोनों का अपोज करने वाला लास्ट चैप्टर हमारा बनाया गया है। और वो लास्ट चैप्टर क्या बनाया गया है गाइस, उसका नाम है गाइस स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस गाइस ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, तो गाइस इस चैप्टर को बनाने का कारण है, कारण क्या है ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी केयरफुली। तो गाइस स्टेट स्पेस एनालिसिस वाले चैप्टर को बनाने का कारण है, सबसे पहली बात तो गाइस इसमें MIMO सिस्टम यूज होता है। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को गाइस आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स को गाइस आप लोग यहाँ पर एक साथ सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप लोगों को यहाँ पर गाइस मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स बहुत अच्छे से काम आएगा, जिसमें आप लोगों के पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस आप लोगों का इनिशियल कंडीशन 0 नहीं होगा गाइस यहाँ पर, यानी आप लोग इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी वाले यानी कि चलते हुए फैन को भी आप लोग पढ़ोगे। तो गाइस यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में नॉट जीरो। तो गाइस बताओ ये यहाँ पर आप लोग कितने टाइप की 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप की, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम जो चैप्टर नंबर 6 तक नहीं था। चैप्टर नंबर 6 तक गाइस आप लोगों के पास सिर्फ क्या था, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट और इनिशियल कंडीशन 0 था। गाइस दोनों कंडीशन को ब्रेक करते हुए हम चैप्टर नंबर 7 में कुछ अलग पढ़ेंगे। तो गाइस ये 2 तरह की दोनों कंडीशन जो पहले हमारे ऊपर लिमिटेशन लगी हुई थी, दोनों लिमिटेशन तोड़कर गाइस हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। और इस चैप्टर नंबर 7 में गाइस आप लोगों को ध्यान से याद रखो, चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे ES का एग्जाम हो गाइस, मिनिमम गेट के एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन या फिर 1 नंबर का एक और क्वेश्चन मान लो तो कम से कम 2 से 3 नंबर का चैप्टर होता है गाइस स्टेट स्पेस एनालिसिस। बहुत स्पेशल चैप्टर है,
सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। और दूसरा गाइस इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन स्टेट स्पेस से आ जाते हैं गाइस इस चैप्टर से। ठीक है, इसी में गाइज हम लोग 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ये भी गाइज हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गाइज ओवरऑल बताइए हमारे पास कितने चैप्टर का कंक्लूजन है? 7 चैप्टर में गाइज हमारी कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट होगी। ठीक है गाइज, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा गाइज। इस पेज पर आप लोगों ने पूरा टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ा। तो मैंने आपको बताया गाइज सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, उसको अलग अलग इनपुट देकर गाइज हम लोग उसके आउटपुट यानी रेस्पॉन्स को चेक करते हैं, वो भी टाइम डोमेन में गाइज। और टाइम डोमेन में एनालिसिस करने के लिए गाइज इसके 2 कंपोनेंट ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रांजिएंट में तो टीआर, टीपी, एमपीडीएस और इज द एरर। गाइज ये कम आते हैं तो बहुत अच्छी बात, ज्यादा आते हैं तो जुगाड़ जो लगाते हैं उसका नाम कंट्रोलर। और गाइज सब चेक करने के बाद हम लोग फाइनली इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो गाइज मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। फाइनली गाइज हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2 मेथड बोर्डे और नाइक्विस्ट पढ़ेंगे। नाइक्विस्ट में गाइज आप लोग पोलर प्लॉट भी पढ़ेंगे हम लोग। और गाइज इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आप छठा चैप्टर कंपनसेटर पढ़ते हैं। गाइज इसके साथ फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कंप्लीट होता है। गाइज अप टू चैप्टर नंबर 6 हमारे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम और इनिशियल कंडीशन हमारी 0 मानकर हम लोग पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 तक। गाइज चैप्टर नंबर 7 में हम ये सारी लिमिट क्रॉस करके जो बाकी कंडीशंस के साथ इन लिमिटेशंस के साथ हमारे क्या सिस्टम डिजाइन होगा उस सिस्टम को गाइज स्टेट स्पेस से पढ़ेंगे। तो गाइज आप लोगों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया था, आई थिंक हो गया था गाइज। ये 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 क्लियर गाइज, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट गाइज इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके डन करें एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क गाइज। स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइज। गाइज आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछें गाइज, अदरवाइज हम लोग कल से गाइज इस क्लास को आज यहीं बंद करेंगे और कल से चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफर फंक्शन पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा गाइज कि आप कम से कम 20 स्टूडेंट्स मिनिमम यहाँ रहे हैं। गाइज आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे पढ़ाने में उतना मज़ा आएगा और उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी कि कैमरा वगैरह हो, मैं भी दिखूँ आप लोगों को, है ना। और आप लोगों को अच्छे से अच्छा पूरा कंटेंट जो है वो एकदम फेयर में बढ़िया से दिया जाए। ठीक है, अब गाइस इसकी पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है शायद, मेरे ख्याल से आने वाले चैप्टर्स की अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग जितने भी मैं नोट्स बना रहा हूँ इसका फाइनली एक पीडीएफ बना के वो भी सेंड कर दिया जाएगा। एवरीथिंग क्लियर गाइस? टेल मी क्लियर? तो गाइस ये आप लोगों के 2 तरह के सिस्टम हम लोगों ने पढ़े। ओके गाइस, सो गाइस 1 मिनट, आप कुछ कमेंट डालना चाहें तो कमेंट डाल दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करके आए गाइस। कल फिक्स 5 बजे गाइस हम लोग हमारा क्लास स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफर फंक्शन। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।